जी मैम, अब स्टार्ट करें थे। आवाज नहीं आ रही आपकी। ये माइक आप तो लैपटॉप माइक यूज कर लें। नो वॉइस। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से देखो। Still हाँ जी, unaudible? अब आ रही, जी प्लीज जी, कंटिन्यू। अब आ रही मैम, स्टार्ट कीजिए। Abadi? Okay. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us live for today's webinar, Finance Bill 2025. Let's begin our session on spiritual note with the recitation of Holy Quran. Jazakallah. I am Saida Samia Harun, an associate member of PIPFA, and I'll be your moderator for this session. I'll keep my remarks short today as I'm a bit under the weather, but very glad to be here with you. Here's how today's session will unfold. First, we'll dive into Finance Bill 2025 with our speakers. Then we'll hear from our panelists on their analysis of Finance Bill 2025, along with question answer session, which is integrated in that session. So feel free to use Zoom question answer box or Facebook comments throughout the session. We'll address as many as possible during our panel discussion. Now, for opening remarks, I would like to invite Mr. Ahmed Suleiman Zahid. He is a member of PIFA Board of Governors and also our fellow member of PIFA and ICAP. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. On behalf of Pakistan Institute of Public Finance Accountants and PIFA Faisalabad Branch Committee and Lahore Branch Committee, I welcome all of you in this wonderful session on Finance Bill 2025. Inshallah, you will learn and you will enjoy this session. Our learned speakers will share their thoughts and views on recent changes in income tax and sales tax and other indirect taxes through Finance Bill 2025. And there will be a wonderful panel discussion. And our worthy panelists will take your questions and answers will be given
on your questions, and hopefully you will be satisfied. And thanks to all of you for joining. Over to you, MOC Sayyida Samia Haroon. Okay. First of all, we have a speaker for direct taxes, Mr. Mr. Muzammil Himani, ACA LLB, AGT, UK, practitioner, researcher, and author on local and international taxation, partner at Himani Westrawala and Company, and executive director at AccuWords Consulting LLC USA, board member of key professional organization and member of Karachi Tax Bar Association. Sir Muzammil Himani. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes. मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर ऑडिबल है सर. Perfect. Thank you very much, Abdul Salam Saab, PIFA, for inviting for this session. बड़ा जो है वो एक commendable और एक जो है वो अच्छा initiative है for the purpose of members. Before we begin, देखिए फाइनेंस बिल की की अमेंडमेंट्स एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कंसर्न्ड है, तो उसमें उससे रिलेटेड हम बात ऑब्वियसली कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बजट के ऊपर, आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग अब इन नंबर्स के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो लास्ट वीक से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको आपने जो है वो चेक भी किया होगा, लेकिन एक एज पार्ट ऑफ दिस सेमिनार हम उस सारी चीज़ों को जो है वो रिकैप कर रहे होंगे. तो अगर हम बजट आउटलुक की बात करें तो जो टोटल आउटले है करंट फिस्कल ईयर का 2026 का, यानी जो अपकमिंग फिस्कल ईयर है, दैट इज 19.278 ट्रिलियन रुपीस as compared to the revised target for the financial year 2025 of rupees 16.802 trillion rupees. ठीक है, ये टोटल आउटले है जो हमने एक जिसे हम कहते हैं कि भाई जो आपका टोटल हजम कितना होगा बजट का, तो वो बेसिकली ये है. अच्छा, फिर अगर हम इसको डिवाइड करें रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एज वी ऑल नो. एक आपके पास जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, एक आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है. तो जो प्राइमरीली जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है, ऑब्वियसली वो टैक्स रेवेन्यू के एस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो 14.131 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रेवेन्यू टारगेट जो है वो सेट किया है एज कम्पेयर टू द करंट ईयर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 11.9 ट्रिलियन रुपीस. तो समवेयर अराउंड जो है वो अगर हम इसको 12 रफली कहें तो 2 ट्रिलियन का जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो है वो हमें जाना है. ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट ये. फिर इसके बाद अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू करंट ईयर के अंदर 4.9 है. ठीक है, और इसी तरह जो अपकमिंग ईयर की हम बात करें तो वो 5.1 ट्रिलियन है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर नॉन टैक्स रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट जो है वो कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम करंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 22.073 ट्रिलियन है. ठीक है, 20 ट्रिलियन इस साल का था और जो है वो अपकमिंग ईयर का 22 ट्रिलियन रुपीस है. अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो डेट सर्विसिंग का है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाफ हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी जो है वो अराउंड 1 ट्रिलियन से आपको कम पे करनी है. अदरवाइज ये है कि फिर ऑब्वियसली अगर आपको वो पे करनी होती है तो फिर यहाँ पे आप जो टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो डिफरेंट देख रहे होते, वो 15 होता, 14 नहीं होता. फिर उसमें नए और ज्यादा जो है वो टैक्स के जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे होते हैं. फिर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की और ग्रोथ रेट की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 7.7% के ऊपर गवर्नमेंट इसको एंटिसिपेट करिए, लेकिन ये कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि अभी जब बजट अनाउंस हुआ था उस वक्त से लेके अब तक जो है वो काफी ग्लोबल सिनेरियो के अंदर जो है वो चीजें चेंज हुई है. ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि जो है वो जिस तरह से वॉर्स हो रही हैं, तो उस तरह से जो ऑयल प्राइसिंग क्या होगी, फिर ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन क्या होगा, फिर ग्लोबल यानी जो लोकल है फिर उस पर कितना इम्पैक्ट होगा. तो 7.7 हम जो है वो एंटिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो है वो ये 7.7 पे रहता है. करंट ईयर का जो है वो 4.7% है. इसी तरह से अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो 4.2% का ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू द रिवाइज्ड ग्रोथ रेट टारगेट फॉर द करंट ईयर 2.68%. ठीक है, ये भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन क्या जो है वो इस तरह से इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी कि जिस तरह का ग्रोथ रेट हम यहाँ पे जो है वो रख रहे हैं. ठीक है,
अच्छा, फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज कि जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है 2 ट्रिलियन का, उसके लिए जाहिर है कि जब आपने 2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा किया है तो उसको अचीव भी तो करना है। तो उसको अचीव करने के लिए किस तरह से अचीव होगा? एक आपका इन्फ्लेशन के थ्रू होगा, दूसरा ग्रोथ रेट के थ्रू होगा, तीसरा आपके पास कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू होगा। ठीक है, तो 500-600 बिलियन के कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो है वो अनाउंस किए हैं। अच्छा, नाउ इफ वी बिगिन विद द पर्सनल टैक्सेशन, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ज़ाहिर है जितने प्रोफेशनल्स यहाँ बैठे हैं सबके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई टैक्स रेट्स का क्या हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमने तो बजट जो नहीं भी देखते थे उन्होंने कहा रेट्स के लिए हमने जो है वो उसको चेक किया। लेकिन अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो देयर इज नो एज सच चेंज। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो स्लाइटली जो है वो एक इंक्रीमेंट सॉरी इसमें कंसेशन दिया गया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें जो इससे पहले रेट्स होते थे, ठीक है, उसके मतलब लास्ट ईयर आपने इसको इंक्रीज किया, उससे पहले जो एग्जिस्ट करते थे अगर आप उससे कंपेयर करें, यानी टैक्स रेट 24 के टैक्स रेट्स को जो टैक्स रेट 2026 के प्रपोज्ड टैक्स रेट्स हैं, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, मेजर डिफरेंस जो है वो आपको जो है वो ये नजर आएगा कि गवर्नमेंट ने कोई आपको कोई ज्यादा जो है वो कोई कंसेशन नहीं दिया है। सिर्फ 2.2 मिलियन पर एनम के जो सैलरी क्लास है, सैलरी ब्रैकेट है, वहां तक आपको जो है वो एक अच्छा वो उन रेट से भी कम आपको जो है वो अब रेट्स ऑफर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल जो है वो कोई एज सच आपको मटेरियली कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं नजर आएगा। फिर अगर हम बात करें एडिशनल सरचार्ज की, ठीक है, 4AB लास्ट ईयर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसको टू द एक्सटेंट ऑफ सैलरी इनकम इसको 10% से 9% करने का प्रपोजल है। अगेन ये कोई इतना बड़ा नहीं है, इंडिया से जो है वो आई एम श्योर दूसरी जगहों पे भी होगा, लेकिन ये इंडिया से जो है वो हमने इसको कॉपी किया था। ठीक है, लेकिन इंडिया के जो थ्रेशोल्ड है और यहाँ के थ्रेशोल्ड है उसमें मटीरियली डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये एडिशनल सरचार्ज लगता है। हमने सिर्फ 10 मिलियन के ऊपर जो है वो उसको रखा था। तो ये भी जो है वो, और अच्छा फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबके ऊपर कंसेशन एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो सिर्फ सैलरी इनकम ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर आप सैलरी इनकम के साथ कोई और इनकम ड्राइव करते हैं तो क्या ये उस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या जो है वो इसको आप अपोर्शन करेंगे, ये सारी चीजें वो हैं कि जो मतलब बाद में जो है वो इसके ऊपर क्लैरिटी आ रही होगी। अच्छा, फिर अगर हम बात करें फुल टाइम टीचर रिसर्चर अलाउंस से रिलेटेड एक टैक्स क्रेडिट जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो अलाउ किया गया है। लेकिन 25% का उसमें रिबेट आपको सैलरी इनकम की ऊपर जो टैक्स था उस पर मिलता था। लेकिन वो अब सिर्फ और सिर्फ टैक्स ईयर 25 तक ही है, यानी यू वुड नॉट बी अलाउड टू क्लेम दिस टैक्स क्रेडिट इन टैक्स ईयर 2026। सिर्फ आप 2025 तक इसको क्लेम कर सकते हैं जो अभी आप रिटर्न जो है वो अपने फाइल कर रहे होंगे। ठीक है, ये एज पार्ट ऑफ इसके नीचे भी जो एक मेजर है जो एग्जेम्पशंस विड्रॉ करने की, वीपीएस के थ्रू जो आप विड्रॉ करते थे पेंशन का, उसके अंदर जो एग्जेम्पशन है उसको भी विड्रॉ करने की बात की गई है। इसी तरह फुल टाइम टीचर का जो 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 एग्जेम्पशन टैक्स रिबेट है उसको भी जो है वो विड्रॉल की बात की गई है, प्रपोज किया गया है। ठीक है, ये सारे वो मेजर्स हैं जो आईएमएफ के थ्रू जो है वो हमें बताए गए हैं कि जितने भी टैक्स की जो एक्सपेंडिचर्स है, यानी टैक्स का एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इन फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस रिबेट्स, वो उसको ग्रेजुअली फेज आउट करते हुए जो है वो उसको रिमूव करना है। फिर एक इंटरेस्टिंग टैक्सेशन की बात की गई है, लेकिन अगेन इसमें भी कोई इतना ज्यादा जो है वो नहीं है कि 10 मिलियन से अगर आपकी पेंशन एक्सीड करती हो और आप 70 ईयर से कम हो पेंशन इनकम, सिर्फ पेंशन इनकम रिसीव करें, तो आपको जो है वो 5% का जितना अमाउंट 10 मिलियन से एक्सीड करेगा उस पर 5% चार्ज होगा। ठीक है, अगेन ये जो है वो इसमें भी एक पॉइंट किया है कि ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है कि जो ओनली पेंशन इनकम ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं पेंशन इनकम के साथ कोई और इनकम ड्राइव करता हूँ तो क्या मुझे यूजुअल टैक्स रेट्स में जाना पड़ेगा? ये अगेन वो सारी चीजें जो मतलब जब ये एक्ट बनेगा और फिर सर्कुलर आएगा तो उस वक्त थोड़ी क्लैरिटी इसके अंदर आ रही होगी। लाइकवाइज पर्सनल टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक टैक्स क्रेडिट री इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ये टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस होता था, टैक्स डिडक्शन होती थी। ठीक है, कि अगर मैं कोई कोई हाउस फाइनेंसिंग लेता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ पर्सनल हाउस, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला के थ्रू आपको जो है वो जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका होगा उतना आपको जो है वो उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, वो उसमें ज़ाहिर एक कैपिंग है, लेकिन ये है कि वो आपको ये चीज जो है वो रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। ठीक है, अगेन अब इसके अंदर एक डिस्प्यूट जो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आता है कि अगर आप इसको 149 के अंदर भी आपको इसको लिंक करना होगा, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम्स ये आती है कि एम्प्लॉयर के पास जब एम्प्लॉइज जाएंगे क्लेम करने के लिए, तो अगर वो प्लेन रीडिंग सेक्शन 149 की करेगा और उसमें ये सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो वो कहेगा कि ये आप अपने रिटर्न के साथ क्लेम करना, हम आपको अलाउ नहीं करते। तो जब वो अलाउ नहीं करेगा, आप अपने रिटर्न के साथ क्लेम करेंगे, तो एज ए रिजल्ट ये होगा कि रिफंड क्रिएट होगा जो कि कभी मिलना
नहीं है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज इसमें आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो है वो एक ऐसा मेजर है कि जिसके ऊपर काफी डिबेट भी हो रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कि अगर आप जो है वो उसके अंदर और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं एक जो है वो बेसिक रिस्ट्रिक्शन की बात करूं कि भाई फाइलिंग से जो है वो आपने इसको लिंक किया है और भी सोर्स ऑफ इनकम से जो है वो आपकी इसमें बात की गई है, तो किस तरह से इसको डिटरमिन करेगा, ये एफबीआर का काम था इन्फोर्समेंट का, ये सारे लोग किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें वो हैं कि जिसके आंसर्स ना हमारे पास है ना शायद जो है वो एफबीआर के पास अभी होंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रोड्यूस जो है वो इसको इस बिल का भी पार्ट बनाया गया है, तो अब देखते हैं कि इसको किस तरह से आप इन्फोर्स जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बिजनेस इनकम की, तो देर आर सर्टेन डिडक्शंस, देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 21। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है वो ये स्लाइड जो है वो बात कर रही है कि आपके पास एक एक्सपेंस था कि अगर आप फॉर एग्जांपल सेल्स करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है, तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपको एक्सपेंस डिसअलाउ होता था। वो एक्सपेंस का जो प्रोविजन था उसको जो है वो ओमिट कर दिया गया है, यानी प्रपोजल है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए ये नंबर 2 से। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आपका डिसअलाउ होगा एक्सपेंस अप टू 10% जो भी आप क्लेम कर रहे हैं ऐसे लोगों के कि जो है वो जिनके पास एनटीएन नंबर ना हो। ठीक है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के केस के अंदर। ठीक है, अगर आप एनटीएन होल्डर के अलावा किसी के साथ एक्सपेंस परचेजेस करते हैं और फिर आप एक्सपेंस क्लेम करें तो अप टू 10% जो है वो आपका आपका जो है वो, अब ये अगेन ये एक ऐसी बात है कि मतलब अभी इसमें बहुत सारी सब्जेक्टिव बात है। ठीक है, कि अगर मैं एक ऐसे पर्सन से करता हूँ कि जो एनटीएन के लिए लाइबल फॉर एग्जांपल नहीं है, उसके थ्रेशोल्ड इनकम के कम है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारी इसमें डिफरेंट एम्बिगिटीज हैं, लेकिन बहरहाल अभी जो ऑन द फेस ऑफ इट जो नजर चीज आ रही है वही है कि आपके पास जो है वो 10% ऑफ एक्सपेंस क्लेम जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर आप एनटीएन होल्डर के अलावा किसी और से परचेजेस करते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट से एक मेजर जो है वो लिया गया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेमेंट करते हैं मोर देन 200,000 की अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल और डिजिटल मींस, ठीक है, तो फिर उसमें जो है वो 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर की एक्सटेंड तक आपको, अब ये भी देखने की बात है कि क्या हर एक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपका तकरीबन जो है वो 60% जो है वो इकोनॉमी आपकी इनफॉर्मल है। ठीक है, तो ये आप किस तरह से इसको इन्फोर्स करेंगे? तो नेचुरली इसमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें उन्हीं पे एप्लीकेबल होंगी कि जो 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 टैक्स नेट से बाहर है वो शायद बाहर ही रहेगा और जो है उसके ऊपर ये एडिशनल कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद डिप्रिसिएशन से पर्टेनिंग एक एक जो है वो आपने मॉनिटरिंग के अंदर भी ये इस तरह की चीजें देखी होगी कि भाई अगर आपने कैपिटल एसेट परचेज किया है और उस पर विदहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस की बात नहीं है, तो हम आपको जो है वो एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे। ठीक है, इसको जो है वो यहाँ पे कैटेगोरिकली स्टेट किया गया है कि अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स नहीं करते, अगर आप सब्जेक्ट टू सेक्शन 152 153 हैं, यानी अगर आप प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और आप जो है वो विदहोल्डिंग नहीं करते, तो फिर एज ए रिजल्ट आपको टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आप जो है वो जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं वैसे ही क्लेम करेंगे, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन में या टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल के अंदर आप इसको इस एसेट को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। लाइकवाइज अगर हम बात करें यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल्स की, तो इसमें 25 ईयर्स से 15 ईयर्स तक इसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस लॉस जो है वो सैलरी के अगेंस्ट अलाउ नहीं होता था, अब उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप रिलीफ की, तो ग्रुप रिलीफ के केस के अंदर मल्टीपल कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब उसमें से एक कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस इन्होंने जो है वो लाने की बात प्रपोज किया है। एडिशन ऑफ अ कंडीशन ऑफ सरेंडरिंग ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ ग्रुप रिलीफ टू द एक्सटेंट दैट द कंपनीज ऑफ अ ग्रुप आर हैव डिस्चार्ज टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। अगर आप जो है वो सरेंडरिंग ऑफ लॉस की बात उस वक्त एप्लीकेबल होगी कि जो ग्रुप है उसके अंदर जो उनकी लाइबिलिटी असेस हो रही है कंपनीज की, रेलेवेंट कंपनीज की, वो नॉर्मल टैक्स के अंदर फॉल कर रही है। फिर एक छोटा सा जो है वो 65F के अंदर चेंज ये है कि सेक्शन 65 रिलेट करता है 100% ऑफ टैक्स क्रेडिट से। अब ये 100% ऑफ टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि भाई ये अवेलेबल आज की डेट पे अगर हम बात करें तो ये क्रेडिट अवेलेबल है कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध को सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया कि एक्सक्लूसिवली और नॉट। ठीक है, यानी अगर ये कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सक्लूसिवली जरूरी नहीं है, तो उसको भी जो है वो 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा।
मिनिमम टैक्स की बात करें, आई एम श्योर आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो उस केस के अंदर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी आपकी एप्लीकेबल होती है सेक्शन 113 की कुछ केसेस के अंदर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो अगर आपकी जो है वो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम है, तो जो डिफरेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। पहले वो कैरी फॉरवर्ड 5 इयर्स तक का अलाउड था, फिर उसको 3 इयर्स किया गया और इस बजट के अंदर इसको प्रपोज किया गया कि इसको 2 इयर्स तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अगेन छोटा सा एक अमेंडमेंट है कि सेक्शन 2 के अंदर एक डेफिनेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि एनपीओज जो हैं वो उसमें रिक्रिएशनल क्लब्स जो मेंबरशिप फी लेते हैं एक्सीडिंग ₹1 मिलियन, वो जो है वो एनपीओ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? उसकी ट्रीटमेंट वैसी होगी जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो है वो की जाती है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है कि जिस पे जो है वो काफ़ी डिस्कशंस हो भी रही हैं असेसमेंट्स एंड अपील्स के ऊपर कि गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी एक एफर्ट के बाद और काफ़ी इसके ऊपर एफर्ट की गई थी कि भाई आप जो है वो कमिश्नर अपील को जो है वो ख़त्म करें उस ऑफिस को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो एफबीआर के डोमेन में आ रहा होता है, तो उसकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर्ड है। ठीक है, उस वो इंडिपेंडेंट जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की बातें की गई थी, जिसकी वजह से फिर एक नया जो है वो प्रोसेस लाया गया कि भाई पिक्यूनरी लिमिट्स इंट्रोड्यूस की गई और उसके अंदर कहा गया कि भाई अगर आप इस लेवल तक हैं, थ्रेशोल्ड तक हैं, तो आप कमिश्नर अपील के पास जाएँ, अदरवाइज़ जो है वो आप ट्रिब्यूनल के अंदर जाएँ। अब वापस से इसको, क्योंकि अपील्स जो हैं वो पेंडिंग पे जा रही थी और जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, तो वापस से जो है वो उसको पुराने जो आपके पास प्रोविजंस थे उसको रिस्टोर किया गया है, एक्सेप्ट फॉर कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप खुद से चाहते हैं कि मैं अपना राइट फॉरगो कर दूं कमिश्नर अपील का, तो ये आपका डिस्क्रिशन है कि आप कमिश्नर अपील के पास ना जाएं, आप डायरेक्टली जो है वो ट्राइब्यूनल चले जाएं। अदरवाइज ये है कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कमिश्नर अपील के पास जाएं और उसके बाद ट्राइब्यूनल जाएं। ठीक है, फिर इसके अलावा रिकवरी से रिलेटेड आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो है वो एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके अंदर ये बात की गई थी कि अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो उस केस के अंदर रिकवरी इनिशिएट की जा सकती है, उसी को वहाँ यहाँ पे रिट्रेट किया गया। फिर शो कॉज नोटिस के अंदर ये होता है कि अगर आप हम 122 की बात करें तो उसमें अगर आपका शो कॉज नोटिस इशू हुआ तो 180 डेज के अंदर कमिश्नर को ये को बाउंड किया गया था कि वो ऑर्डर पास करे, अदरवाइज जो है वो प्रोसीडिंग लैप्स हो जाती। तो अब अच्छा, फिर 90 डेज़ की उसमें एक्सटेंशन भी थी। पहले ये 180 डेज़ 120 डेज़ हुआ करता था। लेकिन अब उसको कहा गया है कि भाई ये 180 डेज़ का टाइम फ्रेम जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो है वो है कि क्वेश्चन अराइज़ होता है कि भाई आपने ये अमेंडमेंट लाई क्यों थे अगर आपने इसको हटाना था? ठीक है, आप लाए इसलिए थे कि आप चाहते थे कि ऑफिसर्स को टाइम बाउंड किया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, ताकि जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो पास हो, ऑर्डर्स हों। अब जब आप टाइम फ्रेम इसमें से रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एनफोर्समेंट को और ज़्यादा वीक कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अपील इफेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें कि अपील इफेक्ट ऑर्डर लेने में बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भई अब आपको जो है वो अगर आपको कोई अपीलेट अथॉरिटी जो है वो कन्फर्म करती है टैक्स डिमांड को, तो उस केस के अंदर आपको अपील इफेक्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट में चैलेंज होता था, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एट द लेवल ऑफ ट्राइब्यूनल जो है वो फाइनल होता था। ठीक है, फिर इसको अमेंड किया गया और कहा गया कि भाई मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ जो है वो आपके पास चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अब वापस से इसको रिवर्ट किया गया कि भाई क्योंकि हाई कोर्ट की एक कैपेबिलिटी नहीं है, हाई कोर्ट की एक्सपर्टीज प्रोबेबली नहीं है कि वो फैक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकें, तो इसलिए जो है वो अब वापस से कहा गया कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही सिर्फ हाई कोर्ट के पास जाएगा और ये 30 डेज की बजाय हम 60 डेज करें, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो भी होगा वो ट्राइब्यूनल की स्टेज पे फाइनल होगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये पहले जो है वो 4 साल की यानी अभी पहले का मतलब आज की डेट पे 4 इयर्स की एग्जिस्ट करती है। अब इसको प्रपोज किया गया है कि इसको 3 इयर्स का तक जो है वो इसको रिड्यूस किया जाए। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें भी की जा रही हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, वो डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और डिलीवर्ड सर्विसेज का है। देखिए, इसमें इसमें बेसिकली आपका सोशल मीडिया से लेके इसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से लेके सबको जो है वो टारगेट करने की जो है वो कोशिश की गई है। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर क्या है क्या उसको अगर हम बात कर लें, बाकी स्लाइड्स को जो है वो आपको सेशन के बाद भी अवेलेबल हो जाएँगी। तो उसमें इसमें बात ये की गई है कि भाई ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ है। ठीक है? अब दराज़ ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है, ई-कॉमर्स का दराज़ मॉल भी है। तो अब अगर कोई वेंडर
दराज पे आना चाहता है तो ये दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रपोज किया गया है कि ये दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड ना हो तब तक दराज जो है वो उसको अपने पोर्टल पे ना ले। ठीक है, अगेन ये इन्फोर्समेंट का काम था जिसको ट्रांसफर शिफ्ट किया गया अपने ऊपर से जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कि भाई आप असिस्ट करें रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई सारे तो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नहीं है और सारे रजिस्टर शायद होना भी ना चाहें, तो फिर एज ए रिजल्ट ये होगा कि फिर वापस से हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू चाहिए ये था कि हम इसको पहले डॉक्यूमेंट करते, चाहिए ये था कि हम पहले इसको इस इंडस्ट्री को और ज्यादा जो है वो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ने देते, लेकिन हमने इस पे फिर से जहाँ पे नजर आया कि भाई यहाँ से टैक्स कलेक्शन हो सकती है, टारगेट्स मीट हो सकते हैं, तो हमने इसको भी टैक्स कर दिया। एज ए रिजल्ट ये सेक्टर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा कि जो इससे एक्सपेक्टेशन डेवलप की जा रही थी। अच्छा, अब होगा क्या कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर अगर मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो इधर आई यूज माई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यानी मैं बैंकिंग चैनल को यूज कर रहा होता हूँ। अदरवाइज ये है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी की मैं बात करता हूँ कि भाई अगर मैं जो है वो गुड्स डिलीवर होंगे तो उसका कैश दूंगा। तो वो कैश वाला जो एरिया है वो कुरियर सर्विसेज हैंडल करती हैं और जो ऑनलाइन वाला एरिया है वो पेमेंट इंटरमीडियरीज, पेमेंट गेटवेज जो है वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं। अब दोनों को ये कहा गया है कि आप दोनों विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट होंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 153, और आपको ये चाहिए कि आप एक्स परसेंटेज के ऊपर जो भी इन्होंने टैक्स रेट डिफाइन किए उसके ऊपर आप जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और ना सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेंगे बल्कि आपने जो है वो हमें क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी करनी है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मंथली रिपोर्टिंग करेगा और ये जो है वो क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे और फिर एफडीआर जो है वो ये करेगा। ये इंटेंशन ये है कि उसको सिंक करेगा, इसको रिकंसाइल करेगा, दोनों डाटा को मैच करेगा। लेकिन पता नहीं, डाटा तो हमारे पास इतना अवेलेबल है लेकिन होता फैक्चुअली जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो आइडिया है। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को अगर हम देख लें, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन इसके अंदर की जो टैक्स होगा वो फाइनल टैक्स ट्रीट होगा। ठीक है, सही है। ये सारी जो है वो जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसमें एक और चीज ये कही है कि जो पर्सन ये गुड्स और सर्विसेज देना चाहता है उसको भी कहा गया कि भाई आप एनटीएन जो है वो ऑब्टेन करें। अदरवाइज क्या होगा कि प्लेटफॉर्म को चाहिए कि वो अलाउ ना करे ऐसे वेंडर को अनलेस कि वो सेल्स टैक्स और इस ऑर्डिनेंस के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर हो। ये बड़ी अजीब सी जो है वो कंडीशन है कि किस तरह से ये होगा। और फिर डिस्पैरिटी भी है। देखिए, डिस्पैरिटी इस तरह से है कि इस पे काफी दफा डिस्कशन भी हुआ, लेकिन क्योंकि ये वापस बजट पे ही हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पिफा के प्लेटफॉर्म से भी अगर ये बात करूँ कि भाई ये डिस्पैरिटी इस तरह से है कि अगर अगर मैं ऑनलाइन गुड्स करूंगा तो मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर मैं यही काम फिजिकल करूंगा किसी मॉल के अंदर तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खैर, इसका दूसरा भी व्यू है कि अगर जो लोग ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है फिर उनके लिए जो नेक्स्ट सेशन में आप सेल्स टैक्स में देखेंगे तो उसमें और ज्यादा एडवांटेज है कि आपको रिड्यूस टैक्स जो है वो देना होगा। तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अभी एग्जिस्ट करती हैं। आई एम श्योर के ये जो कमिटीज फॉर्म हुई हैं ये इसके ऊपर अपना रोल प्ले करके इन सारी चैलेंजेस को, इसमें से जो भी कंफ्यूजन है इसको रिमूव करवाएंगे। अच्छा, फिर ना सिर्फ जो है वो आपने जो है वो जो पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट प्लेस है बल्कि जो फॉरेन वेंडर्स हैं जिनका सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस है पाकिस्तान में, उनको भी कहा है कि भाई आप जो है वो टैक्स देंगे। ठीक है, अनलेस कि आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी जो है वो एग्जिस्ट करती हो आर्टिकल 5 के थ्रू। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपने टैक्स देना अगर आपकी सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है। और पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? वही पेमेंट इंडिविजुअली कि भाई रेमिटेंस, उसको कहा है कि भाई अगर आप नहीं नहीं देंगे तो रेमिटेंस इनके रोक लें। ठीक है, कब सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस होगी उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो बेसिक कंडीशन है और उसके बाद ये सारी उसकी एंसेसरी उसकी कनेक्टेड कंडीशंस हैं, एडिशनल फैक्टर्स हैं कि भाई जब 5 से ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन किसी ईयर के अंदर एक्सीड कर जाए तो हम ये ट्रीट करेंगे कि आपकी सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। और फिर उसके साथ उन्होंने बताया कि और किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे यूजर बेस पाकिस्तान में हो, बिलिंग और कलेक्शन लोकल करेंसी में हो रही हो, फाइनल डिलीवरी पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को हो रही हो। इस तरह की चीजें जो है वो आपने इसके अंदर, अब चैलेंज ये आएगा इसके अंदर के टैक्स ट्रीटीज के होते हुए। ठीक है, टैक्स ट्रीटीज के होते हुए किस तरह से आप किसी फॉरेन जो है वो उसको बाउंड कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे।
ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो नजर आता है वो वैसे ही है जैसे 152 1C के अंदर हुआ था कि आप टैक्स कहीं और लगाना चाहेंगे और अल्टीमेटली जो इसका बर्डन बेयर कर रहा होगा वो आपका कंज्यूमर ही बेयर कर रहा होगा। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे अभी हम रिसेंटली जब यूएस में टैरिफ्स आए थे तो उसमें एक बड़ी कॉमन डिस्कशन हो रही थी कि भाई कंजम्पशन तो खत्म नहीं हो सकती, तो अगर यूएस के सिटीजन्स को, यूएस के रेसिडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल अगर गुड्स चाहिए, उनकी रिलायंस प्लेस हुई हुई है किसी गुड्स पे, तो गुड्स तो कंज्यूम करेंगे। अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, टैरिफ लगाएंगे तो फिर ये होगा कि फिर जो है वो रेलिवेंट जो कंज्यूमर है वो उसको बेयर करेगा बर्डन को। ठीक है, तो ये इस तरह की डिबेट्स जो है वो इसके अंदर चल रही हैं। फिर प्रॉपर्टी इनकम की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है गवर्नमेंट के लिए भी, एफबीआर के लिए भी, कि आप जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फिर उस केस में 4% ऑफ द मार्केट वैल्यू पर एनम उसका रेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर उससे ज्यादा है तो एक अलग इशू है, लेकिन मिनिमम हम जो है वो उसको इतना ट्रीट कर रहे होंगे। फिर इसके अलावा आईपीएस अकाउंट्स के ऊपर बात की गई है कि भाई अगर आपके पास जो है वो जो भी कस्टोडियन ऑफ डेट सिक्योरिटीज है, वैसे तो 37A में जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ये पीएसएक्स के थ्रू ट्रेड नहीं हो रहे, सेटल एनसीसीपीएल के थ्रू नहीं हो रहे। तो जो भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट है, तो इसमें जब भी डिस्पोजल ऑफ डेट सिक्योरिटीज होगा, ठीक है, तो वो टैक्स रेट होगा उसके ऊपर 15% का। अच्छा, फिर कुछ अमेंडमेंट इन टैक्स रेट्स के ऊपर अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रपोज किया गया है कि आपका टैक्स रेट 15% से 20% हो जाएगा। ठीक है, ये प्रपोजल है। ठीक है, और इसमें ऑन द फेस ऑफ इट इंटेंशन ये लगती है कि ताकि लोग पैसा जो है वो बैंक्स में ना रखें, बल्कि उसको मार्केट के अंदर लेके आए ताकि वो बिजनेसेस के अंदर यूज हो। अब वो बिजनेसेस के अंदर यूज होता है या इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट बन जाता है, डॉक्यूमेंट होता है नहीं होता है, ये एक अलग डिबेट है। फिर टैक्स रेट्स फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें, ये बड़ा एक हार्श मेजर है कि जो गवर्नमेंट ने सिर्फ रेवेन्यू टारगेट्स के लिए लिया है कि पेमेंट जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स रेट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज कर दिया है कि जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं उनको 6% का प्रपोजल है, नॉन रेसिडेंट के केस में 8% है जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है। और फिर अगर आप स्पेसिफाइड सेक्टर नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 15% तक हो सकता है। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो बड़ा एक 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 डिफिकल्ट और एक सिचुएशन है कि किस तरह से ये सेक्टर्स जो है वो इसको लेंगे। लेकिन अपेरेंटली यही है कि गवर्नमेंट जो है वो नए जो टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बजाय जो है वो एडिशनल जो टैक्स ले रही है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही लेती हुई नजर आ रही है। अच्छा, फिर विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो नॉन फाइलर्स का प्रपोजल है कि 0.6 से 1.2 था, लेकिन अभी इन्होंने 0.8 किया है। ठीक है, जो जो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी वो 1.2% की एक्सटेंड तक हो रही थी। फिर ऑफशोर फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज का टैक्स रेट देखिए, अगेन ये आपको जहां पे भी ये चीज नजर आए कि जहां पे टैक्स रेट्स बढ़े हैं, इसका मतलब सिंपल गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, टैक्स लेने के लिए टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया। ठीक है, कोई एफर्ट नजर आए कि आपने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए कोई काम किया हो, तो अभी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अलावा जिसमें इटसेल्फ खुद कंफ्यूजन है, आपको अभी तक कोई इस तरह की चीजें नजर नहीं आई है कि कहीं से कम किया कहीं से बढ़ा दिया, मतलब उसको बस मैनेज किया आपने। सुपर टैक्स इतना हाई टैक्स रेट्स हैं उसके अंदर और सिर्फ 0.5% का आपने जो है वो रिडक्शन दिया है, और प्रपोजल है 200 मिलियन से लेके 500 मिलियन जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसमें 200 मिलियन से 500 मिलियन के अंदर आपको जो है वो इस पे सुपर टैक्स की रिडक्शन मिल सकती है। फिर एडवांस टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये किया गया है कि बायर का बर्डन शिफ्ट किया गया है सेलर के ऊपर। ठीक है, यानी क्योंकि ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसके लिए दो काम किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, इससे कनेक्टेड 60+ इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन से, तो इसके लिए दो काम किए। एक तो टैक्स क्रेडिट दिया है, ठीक है, जिससे इंडिविजुअल्स भी जाहिर है उससे जो है वो खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत अच्छा काम हो गया। दूसरा जो है वो इस सेक्टर के लिए भी अच्छा है कि लोग जो है वो फाइनेंसिंग लेके भी अगर लेंगे तो उनको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। और दूसरा जो काम किया है वो टैक्स रेट्स को बायर के लिए कम किया है। ठीक है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना जो जो भी टैक्स रेट बायर के लिए आपने कम किया है, उतना ही टैक्स रेट्स आपने सेलर के लिए जो है वो प्रोपोर्शनेटली आपने उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अगेन यहाँ पे भी जो है वो मतलब इंटेंशन वही है कि टैक्स कलेक्शन ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई इस तरह का मेजर नहीं है कि जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करता हो, जो इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने से पर्टेन करता हो। तो अगेन ये भी एक जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है। Okay, so with this, I would like to conclude my presentation. Over to moderator. मैम आप ऑडिबल नहीं है, काइंडली जरा माइक चेक कर लें।
मैं आपकी भी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? जी मैम, अब ऑडिबल है। Thank you, sir, for your insight of finance bill regarding direct taxes. Now coming to our next speaker for indirect taxes, Ms. Taha Bakay, fellow member of ICAP, partner at PwC, Pakistan with over 16 years of experience in tax services. He has contributed her expertise to various capacities, including being the part of Reforms and Resource Mobilization Commission to review tax policies and budget proposals. Ma'am, please, over to you. Thank you so much, Samya. It's a pleasure being here at the BIPFA forum. I hope I'm audible. If I'm not, Yes, please let me know. Thank you. yes, अच्छा, sure. तो पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ जो मेरे ख्याल से बजट है, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम बाकी सारी प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे और हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अमेंडमेंट्स का क्या रैशनल है, क्यों ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। तो सेल्स टैक्स मेरा जो सब्जेक्ट है इस वक्त आज की प्रेजेंटेशन का वो सेल्स टैक्स है, लेकिन मैंने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स वगैरह बजट्स जो सारे पढ़े हैं। तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स में कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। मुज़म्मिल ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे तरीके से उनको कवर किया। मैं भी यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। बेसिकली जो अगर आप बजट को ओवरऑल देखें तो उसमें कुछ थीम्स आपको नज़र आती हैं। जैसे हर साल का जो बजट होता है उसकी देयर आर सर्टेन थीम्स, राइट? सो इस दफ़ा जो बजट थीम है उसमें 2-4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि इन्होंने जो डिजिटली ऑर्डर्ड या डिजिटली प्रोक्योर्ड गुड्स एंड सर्विसेज़ है उसको कैप्चर किया है। उसको कैप्चर उन्होंने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स में तो चलें आपके पास सिर्फ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पाकिस्तान की होती है या इंपोर्ट की होती है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कैप्चर किया। लेकिन इनकम टैक्स में दोनों तरीके से लोकल एंड फॉरेन दोनों जो डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज उनको कैप्चर करने की कोशिश की गई है। दूसरी जो थीम मुझे लगती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोशिश की गई है कि जहाँ पे लूप होल्स हैं टैक्स सिस्टम में उसको कहीं थोड़ा बहुत फिक्स किया जाए। एंड वी ऑल नो कि एफपीआर जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ भी मूव कर रहा है। दे आर टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन एंड उसकी तरफ भी काम हो रहा है। और ये सब जो अमेंडमेंट्स इसमें इनेबलिंग प्रोविजंस लाए गए हैं ये उसी की एक कड़ी है। तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई इसमें वो एक जो टैक्स का निज़ाम है हमारा पाकिस्तान का वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा डंडे के ज़ोर पे होता जा रहा है। इट्स एक जो टैक्स का जो कल्चर है उसमें सारी दुनिया में देखा जाता है कि टैक्स में एक तो चीज़ ये कि टैक्स में इतना लोगों को इवेट करना एक तो मुश्किल हो, आपकी जो सिस्टम्स हैं वो इतने टाइट हो कि उसमें से लोगों के लिए इवेजन करनी मुश्किल हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप टैक्स पेयर के लिए टैक्स को पे करना आसान बनाएं। जो टैक्स पे करना चाहता है उसके लिए टैक्स पे उसके लिए मुश्किलात मज़ीद ना आएँ, ताकि लोग आएँ कि और वो कहें कि हमारे लिए कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं हो रही, हमारे लिए और रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारे लिए टैक्स इवेट करना मुश्किल है। पाकिस्तान में इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ना बेसिक, इनको मद्देनज़र अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा जाता। एंड अभी भी अगर हम बजट में देखेंगे तो मैं तीसरी बात जो थीम के ऊपर करना चाहती हूँ यही करना चाहती हूँ कि जो कोर्सिव एक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब कोर्सिव एक्शंस जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें इनकम टैक्स में आपने देखा होगा कि वो इनएलिजिबल पर्सन का कॉन्सेप्ट आ गया है। सेल्स टैक्स में भी बैंकों को कह दिया कि आप उनको ना ये करें, कोरियर कंपनीज को कह दिया कि आप उनके साथ ना करें, रजिस्ट्रेशन करें, करवाएं ये सब चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो आपका डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसी को आपने फोर्स किया है, कर रहे हैं कि आप जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको लेके आएँ। द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर कि वो आपके बिहाफ पे एफबीआर के काम करे। ये मैंडेट तो एफबीआर का है कि जो टैक्स नेट बढ़ाए। बट इधर भी जो चीज़ एक नज़र आई है वो यही है कि कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं जिसमें जो कोअर्सिव एक्शंस हैं वो उनको लेने के लिए एफबीआर या उन्होंने कुछ ऐसे अपने एजेंट्स सॉर्ट ऑफ बनाए हैं कि जो कोअर्सिव एक्शंस ले सकें। जो चौथी चीज़ है जो मुझे काफ़ी सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव में जो काफ़ी अलार्मिंग भी है वो है पावर्स। जिस हिसाब से टैक्स अथॉरिटीज़ के पावर्स बढ़ाए गए हैं और उसमें आप देखें कि एक जो वो है सीईओ और सीएफओ की अरेस्ट करने की पावर्स। तो
इस तरह की चीज़ों से जो एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो शैटर होता है। बल्कि एक हमारे ही कोई जानने वाले वो मजाक में कह रहे थे कि हमने अपनी कंपनी से सीईओ और सीएफओ की डेजिग्नेशन ही ख़त्म कर देनी है कि हम तो ये इट्स गेटिंग टू टफ टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। द एनवायरनमेंट जो है अभी वो उस तरह की सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चीफ कमिश्नर है वो एओबी को भी मैटर रेफर कर सकते हैं अगर उनके ख्याल में कोई ऑडिट सही नहीं हुआ। सो विद दिस बैकग्राउंड आई विल शेयर माय स्क्रीन और मैं फिर आपको थोड़ा सा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके बारे में बताती हूँ कि इन्होंने किस तरह की अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की है। अच्छा, तो पहला इन्होंने जो लेके आए हैं एक जो प्रोपोजिशन है वो है कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसका कॉन्सेप्ट कस्टम्स में भी आया है और सेल्स टैक्स में भी आया है। कस्टम्स में इट्स क्वाइट डिटेल्ड। यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंट ई बिल्टी के नाम से, उसकी जनरेशन की बात की है कि एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, वो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कार्गो के साथ जाता रहेगा। एवरी कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर, शिपिंग एजेंट वगैरह वगैरह ये सारे जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। एफपीआर जो है इसकी डिटेल्स बताएगा, अभी इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है ई बिल्टी। सो अब इसमें यही है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो ट्रांजिट में पूरे रजिस्टर होंगे, ट्रैक होंगे, और ये जो इसकी फाइन्स भी बहुत यानी जो टैक्स इवेडेड है वो भी रिकवरेबल होगा अगर ये ई बिल्टी डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पे नहीं होता। तो फाइन भी है 50,000 का, टैक्स जो इवेडेड है वो भी रिकवर होगा। सो ये भी एक ट्रैकिंग सिस्टम सॉर्ट ऑफ बनाया है कि अगर कोई गुड्स आपकी जा रही है तो उसकी ट्रैकिंग के लिए ये सिस्टम बनाया है, बनाने की प्रोपोजिशन है। दूसरी जो मेजर अमेंडमेंट है वो है रिटेल प्राइस की डेफिनेशन में। अच्छा, एक तो एक बड़ा स्पेसिफिक है जो कि बेवरेज इंडस्ट्री से रिलेट करता है। बेसिकली बेवरेज इंडस्ट्री में चिलिंग चार्जेस का हमेशा से एक झगड़ा था जिसके ऊपर एफपीआर ने 5 to 10% कहा हुआ था कि चिलिंग चार्जेस बेवरेज इंडस्ट्री में हो सकते हैं, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू सर्टन इंडस्ट्री। नाउ इसको उन्होंने कहा है कि इसको हम यूनिफॉर्म एक 5% चिलिंग चार्जेस कर देंगे, जो कि पिछले ऑर्डर्स में भी एक्सेप्टेड था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इसके ऊपर हैं चिलिंग चार्जेस पे। सो एक तो ये प्रोपोजिशन है। दूसरी जो प्रपोजल है एफपीआर का, वो उन्होंने कहा है कि एफपीआर जो है वो थर्ड शेड्यूल जैसे जो हमारे आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर टैक्स रिटेल प्राइस के ऊपर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है टैक्स पे करना, तो उन आइटम्स में एफबीआर को पावर दी गई है कि वो रिटेल प्राइस उसकी फिक्स कर दें। लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर, यानी ये प्राइस, ये जो अभी जो लॉ है वो मैन्युफैक्चरर को एम्पावर करते हैं कि रिटेल प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, बट इन सर्टेन केसेस एफबीआर भी मैन्युफैक्चरर की जगह रिटेल प्राइस को ऑफ गुड्स को फिक्स कर सकता है और फिर उसी के ऊपर मैन्युफैक्चरर से टैक्स कलेक्ट होगा। अब ये इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल गजट में जो एक प्रॉपर तरीका है उसके थ्रू होगा। अच्छा, इम्पोर्टेड गुड्स के केस में जो रिटेल प्राइस है उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि जो भी इम्पोर्टेड गुड्स होंगी उसमें रिटेल प्राइस जो है वो लेस देन 130% ऑफ कस्टम्स असेस्ड वैल्यू नहीं हो सकती। यानी जो कस्टम्स ने वैल्यू असेस की है इम्पोर्ट की, उससे 130%, उसका 130% होना ज़रूरी है, उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसमें जो मुज़म्मिल भी बात कर रहे थे, जो मैं भी आपको कह रही थी शुरू में, जो प्रिएम्बल था मेरी कॉन्वर्सेशन का, उसमें मैं यही कह रही थी कि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑर्डर डिजिटली जो है उसमें भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें लेके आई गई हैं। अभी जो होता है वो बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेटर्स को कहा गया है। एज ऑफ नाउ जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेटर्स जो हैं वो विदहोल्ड करते हैं 1% सेल्स फ्रॉम नॉन एक्टिव वेंडर्स, विच इज़ फेयर इनफ। एंड इसकी जो डिटेल्स होती हैं उसकी बेसिस पे देयर इज एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन जो कि एफबीआर के पास मौजूद है कि 1% सेल्स टैक्स जिनका विदहोल्ड हुआ है उनसे आप जाके उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको पकड़ें क्योंकि नॉन एक्टिव वेंडर्स हैं, राइट। सो अभी की तो ये पोजीशन है। अच्छा, अब ये क्या इन्होंने जो शिफ्ट लेके आ रहे हैं इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं जो कि हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्स। और दूसरा जो है जो कैश और डिलीवरी वाले हैं इसमें कोरियर कंपनीज को उन्होंने इसका पाबंद कर दिया कि आप ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने और भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी रखी हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस की रिक्वायरमेंट है कि वो रिपोर्ट करेगा, पेमेंट इंटरमीडियरी की रिक्वायरमेंट है कि वो रिपोर्ट करेगा, यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड कोरियर कंपनीज प्रोवाइड करेंगी सप्लायर वाइज डिटेल्स। ये तीनों को रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की भी। ना इसमें अब जो रेट है इसका 2% रेट इन्होंने कहा है और उस पर कहा है कि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा, इसमें जो है ना जो अब जो प्रैक्टिकल इसमें चैलेंजेस आएंगे ना, वो पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर सेल्स टैक्स है तो
अगर मेरे कोई मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, उसने अपने इनवॉइस के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया, अगर वो प्रोडक्ट स्टोर के थ्रू नहीं सेल हो रही, लेकिन वो सेल हो रही है ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू, तो उसमें 2% सेल्स टैक्स है, जिसमें ना इनपुट है ना और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। फाइनल सेल्स टैक्स 2% देके वो फारिग हो गया। अब आई डोंट नो दिस इज बेनिफिशियल, दिस इज नॉट, ये तो हर उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। बट मैं अपने बारे में अगर सोच रही थी कि मैं स्टोर जाऊँ, मैं उनसे कहूँ कि ये जो आपकी प्रोडक्ट आ रही है, मैंने देखी प्रोडक्ट, मैंने कहा ठीक है, मैंने उधर ही खड़े होकर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। सिमिलरली जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे ट्रेस करेंगे अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू थ्रू स्टोर पे पेमेंट करी है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करी है? क्या बैंक्स के पास ये मैकेनिज्म्स हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से कर सकते हैं? सो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्टेप जिसमें जो एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं, कोरियर कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गई, उन्हीं से ही आपने इंफॉर्मेशन दी मांगी है और उनको ही आपने पाबंद किया है कि वो इन्फोर्समेंट करें टैक्स की और कलेक्शन करें। इसी के अकॉर्डिंगली ई कॉमर्स की भी डेफिनेशन ऐड की गई है और रजिस्ट्रेशन जो है, जो सेलर्स हैं, इनकी भी कहा गया है कि आप जो है वो सेलर्स जो है यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट ऑब्टेन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज दे कैन नॉट यूज मार्केट प्लेस और कोरियर सर्विसेज। इसमें भी मार्केट प्लेस और कोरियर सर्विसेज वालों को कहा है कि आप उनको यूज ना करने दें, जबकि ये काम एफबीआर का होता है, ये काम रेवेन्यू अथॉरिटी का होता है, ये काम मार्केट प्लेस या कोरियर सर्विसेज करने नहीं है, उनका काम अपने बिजनेसेस चलाना है। अच्छा, एडजस्टेबल इनपुट टैक्स इसमें एफबीआर का आपने देखा होगा कि एफबीआर में हमारे पास अक्सर फोन्स आते हैं कि भाई आप आज इनपुट टैक्स इस दफ़ा इस महीने इनपुट टैक्स आप क्लेम ना करें, डेफर कर दें अगले महीने, अगर एक्सपायर नहीं हो रहा, थोड़ी सी हमें पेमेंट की ज़रूरत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एफपीआर जो है वो हायर और लोअर लिमिट्स ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फिक्स कर सकता है, ये उसको कानून में पावर्स दी जा रही हैं। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, और इसमें अब उन्होंने जो डेटा, जो डिसीजन का जो क्राइटेरिया दिया है या डिसीजन का जो मॉडल दिया है, वो ये दिया है कि एक डेटा एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो रिस्की इनपुट्स हैं उसको आप डेफर कर देंगे। नाउ हु इज गोइंग टू प्रिपेयर दिस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द रिस्क बेस्ड क्राइटेरिया, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स ऐसे होंगे जिसपे वो कह सकते हैं कि ये रिस्की आइटम्स है। जैसे अगर एंटरटेनमेंट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ठीक है, एक रिस्की आइटम्स है जिसके ऊपर जजमेंट्स भी मौजूद हैं, बट ये अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और अजीब सी थोड़ी सी प्रोविजंस है जिसमें बहुत ज़्यादा एफबीआर को पावर्स दी गई हैं। वी डोंट नो कि रिस्क असेसमेंट किस किस बेसिस पे होगी। इसमें भी राइट टू कंटेस्ट डेफिनेटली दिया हुआ है, बट अपील का प्रोसेस और ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, बट द इनिशियली द प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा वेग है, और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पता नहीं किस तरह से इसका काम किस तरह से करेगा। अच्छा, अभी भी जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, उसके लिए भी असेसिंग ऑफिसर कैन मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और अभी भी उसको पावर्स है, बट ये पावर्स जो है now this typically applies when a person fails to furnish a return after receiving a notice. Now amendment जो propose कर रहे हैं, एक तो non obstante clause is proposed for specific cases, फिर उसके बाद 236G जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, 236G जो है, अगर उसमें किसी का टैक्स जमा होकर डिपॉजिट हुआ हुआ है, तो उस 236G का जो टैक्स आया हुआ है उसको डिपार्टमेंट बेसिस बना के आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। 236G ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो टैक्स कलेक्शन ऑन एडवांस टैक्स ऑन डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से कलेक्ट करना होता है। तो ये अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसकी बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अच्छा, टाइम लिमिटेशन फॉर असेसमेंट, इसमें जो सेक्शंस हैं हमारे, उसमें 120 दिन का टाइम दिया गया है पहले, कि अगर आपको कोई नोटिस है, शो कॉज नोटिस है, तो उसको 120 दिन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास होना है। इसमें भी एक जजमेंट है जिसके ऊपर इसको इंटरप्रेट किया गया है कि 120 दिन कैसे काउंट होंगे, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो हमारी इस वक्त का बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बट प्रपोज चेंज इसमें यह है कि 120 से इसको 180 दिन बढ़ा के कर दिया जाए। नाउ अगेन इसमें भी अब आप देखिए, जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कमिश्नर ने जो है ना बहुत ज़्यादा पावर्स को एक्सपैंड कर दिया गया। इसमें भी जो बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स है, द कमिश्नर कैन ऑर्डर बैंक्स टू बार ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट्स फॉर एनीवन हु फेल्स टू रजिस्टर अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। नाउ अब अगेन के ये इसकी राइट टू अपील है, चीफ कमिश्नर को अपील कर सकते हैं 30 डेज में, और जिस तरह तो रजिस्ट्रेशन होगी,
कमिश्नर जो है वो इमीडिएटली रिमूव द बार। सो बैंक्स का भी एक सवाल ये पैदा होता है कि बैंक्स के अपने कस्टमर्स का इस तरह से कर सकते हैं क्या कि वो बार कर दें, बिकॉज एफबीआर ने उनको कहा है, बिकॉज अगर बैंक्स नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी, जैसे हम रिकवरी केसेस में देखते हैं, उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन होती है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है फ्रॉम द एफबीआर। इसमें अभी इन्फोर्समेंट डेट्स की नहीं बताई गई है, बट अगर इसकी इन्फोर्समेंट होती है तो दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी क्वाइट रिस्की, एंड एफबीआर की पावर्स जो है वो इसमें काफ़ी हद तक इस तरह से बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, ban on bar on transfer of immovable property. The commissioner can now order property authorities to bar the transfer of immovable property for anyone who fails to register under the Sales Tax Act. अब इसमें भी एक बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है कि जो भी सेल्स टैक्स एक्ट में नहीं इसने वो करा उसको कर सकते हैं, उस पर कमिश्नर कह सकता है कि इसको आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके नाम पे ना रजिस्टर करें, ट्रांसफर ना करें। तो इसमें भी सिमिलरली अपील का प्रोसेस है जो कि चीफ कमिश्नर के पास वो होती है, और इसमें भी इमीडिएटली बार लिफ्ट हो जाता है जब जो अग्रीव पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करता है। सिमिलरली दोनों प्रोविजंस जो बार ऑन ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट और बार ऑन ऑपरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर है, और इन दोनों की इन्फोर्समेंट डेट अभी नहीं बताई गई है। बट दीज प्रोविजंस आई बिलीव आर क्वाइट हार्श। बैंक्स को और इस तरह से कस्टमर्स को और टैक्स पेयर्स को कि आप काम ना करें, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना करें, दैट इज अगेन अ वेरी हार्श प्रोविजन, एंड दिस शुड नॉट हाउ द टैक्स फंक्शनरी, हाउ द टैक्स डिपार्टमेंट शुड वर्क। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस डेफिनेटली करनी है, सेल्स टैक्स में डेफिनेटली बहुत सारे लोग नहीं आ रहे होते जिनके ऊपर आपको क्रैक डाउन करना चाहिए, बट उसके और भी तरीके हैं। दीज मेथड्स, अगर इससे कोई वो होगा तो और ज़्यादा लोगों के एक डिस्टेंस पैदा होगा रेवेन्यू अथॉरिटी में और टैक्स पेयर्स में। एक जो मजीद पावर्स दी गई हैं, चीफ कमिश्नर को बिजनेस प्रेमिसेस सील कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट अगर इससे पहले कुछ सेफगार्ड्स कहे गए क्योंकि बड़ी हार्श एक्शंस हैं, एंड इस तरह से बगैर किसी अपॉर्चुनिटी या बगैर किसी पब्लिक नोटिस वगैरह के ये इस तरह से चीज़ें चीफ कमिश्नर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इट वुड रिजल्ट इन हाई हैंडेडनेस। जिसके साथ भी आपको कोई भी एतराज़ हो, आपने उसके कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस सील कर दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उससे पहले कुछ सेफगार्ड्स बताए गए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, ताकि एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले। फिर उसके बाद इसमें भी इनमें भी जो ये पावर्स दिए गए हैं, इसमें भी रजिस्ट्रेशन के बाद, इसमें और पिछले जो प्रोविजंस हैं उनमें डिफरेंस ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद रिसीवर को विद इन 2 वर्किंग डेज हटा देना है, बाकी पिछले जो प्रोविजंस हैं उनमें इमीडिएटली बार लिफ्ट करना है। सिमिलरली इसकी भी जो डेट है ऑफ एनफोर्समेंट वो नोटिफाई नहीं हुई है, बट एफबीआर की पावर्स हम आगे भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दी गई हैं। ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसेस पूरा डिटेल किया गया है, नया प्रोसेस लेके आया गया है। कमिश्नर मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस पहले, उसके बाद कमिश्नर जवाब अगर 15 डेज ऑफ सस्पेंशन में नोटिस इशू करेगा, आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई कमिश्नर विल आइदर रिवोक द सस्पेंशन और इशू एन अपीलेबल ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। तो चीफ कमिश्नर नहीं करेगा, नॉर्मल अपेलेट प्रोसेस के थ्रू ब्लैक लिस्टिंग को ऑर्डर भी जाएगा। The board currently requires entities to integrate their electronic invoicing systems for real-time sales reporting. अब ये रूल्स में है नाउ, इसको मेन इनैक्टमेंट में सेक्शन 23 में लेके आया जा रहा है, एंड सिमिलरली टीयर 1 को भी रूल्स से सेल्स टैक्स एक्ट में इन्हीं सब जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग सिस्टम है इसको लेके आया जा रहा है। सो ये एक अगेन आपको पता ही होगा ई इन्वॉइसिंग सिस्टम का, जो कि बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसका एक चल ही रहा है ऑलरेडी। एनीवे, तो रिवीजन ऑफ रिटर्न में भी अभी एज ऑफ नाउ जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए होती अगर आप रिवाइज रिटर्न सबमिट करते हैं 60 दिन में, और उसका टैक्स जो है वो पेबल मजीद निकलता है या रिफंडेबल जो है वो कम हो जाता है। जो अब जो प्रपोज चेंज है वो उसमें कहा गया है कि कमिश्नर की अप्रूवल हर हाल में चाहिए होगी, चाहे जो भी रिविजन रिटर्न में टैक्स इम्पैक्ट जो भी हो, बट कमिश्नर की अप्रूवल हर हाल में चाहिए होगी। अच्छा, वेरियस डायरेक्टरेट्स की जो काफ़ी उन्होंने पावर्स एक्सपैंड कर दी हैं, जो उनकी ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं। पास्ट एक्शंस विल ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस डायरेक्टरेट जनरल विल नाउ बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटीज ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, देयर पास्ट एक्शन एंड प्रोसीजर विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रैटिफाइड। दिस चेंज प्रोवाइड्स लीगल बैकिंग फॉर द ऑनगोइंग ऑपरेशंस जो अभी इनके चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स जो हैं, आपने सब खबरों में देखा होगा कि एक्सपर्ट्स जो है उनको अपॉइंट करने की पावर्स हैं, एंड 2000 ऑडिटर्स जो है वो अभी एडवर्टीजमेंट डिफरेंट ऑडिट फर्म्स भी अपॉइंट करी थी और बोर्ड भी खुद अपॉइंट करा था। सो ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं।
नाउ अगेन अभी हम आगे भी आएंगे ना, तो उसमें मेरा एक सवाल पैदा होता है इनफैक्ट। फिर चलें, पेनल्टीज भी हैं, कुछ टैक्स फ्रॉड की पेनल्टीज हैं जो इसमें इंक्रीज की गई हैं। डेफिनेशन टैक्स फ्रॉड की ब्रॉडली इंक्लूड्स नाउ नो includes any knowing intentional act, omission to cause tax loss, specifically targeting fake input tax generation and fictitious section 73 compliance। तो टैक्स फ्रॉड को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया। और वैसे भी जो पिछली साल भी जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन चेंज हुई थी, उसके बाद जो नोटिस सेल्स टैक्स का आया है प्रोब के लिए या कोई भी इंक्वायरी आई है, उसमें उन्होंने टैक्स फ्रॉड के प्रोविजंस ज़रूर इन्वोक किए हैं। सो ये भी जैसे मैं कह रही थी कि एक जिस तरह की हमारी फ़िज़ा बनती जा रही है टैक्स कंप्लायंस की, या जिस तरह से एक डिपार्टमेंट की हॉस्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है, ये भी उसी को ज़्यादा ही इंक्रीज़ ही करेगा। अच्छा, डेफिनेशन जो है वो बेटर की जो डेफिनेशन है वो भी वो कर दी गई है, शामिल कर दी गई है। एंड बेटर का भी जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो है अ पर्सन हु अबेट्स और कनाइव्स इन कमिटिंग टैक्स फ्रॉड। टैक्स फ्रॉड की भी आप याद रखें कि डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है। एंड उसमें बेटर कभी कहा है कि जो अबेट्स और कनाइव्स इन कमिटिंग टैक्स फ्रॉड इज लायबल अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज टू इम्प्रिजनमेंट फॉर फॉलोइंग टर्म और फाइन टू 100% ऑफ टैक्स इवेडेड। इसमें 5 साल का भी है कि अगर टैक्स इवेडेड और सॉट टू बी इवेडेड 1 बिलियन से कम होता है, और 10 साल भी अगर इन ऑल अदर केसेस। अब इसमें जो है वो द बेटर की जो डेफिनेशन है उसको भी डिफाइन किया गया है। और उसमें अगर हम पढ़े ना डेफिनेशन, तो इसमें लिखा हुआ ये है कि इट मीन्स अ पर्सन हु अबेट्स और कनाइव्स इन टैक्स फ्रॉड और इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन इंक्लूडिंग द पर्सन। यानी इसमें उन्होंने कहा है, अब ये जो कनाइवेंस है इन टैक्स फ्रॉड, दिस इज वेरी ब्रॉड। इसमें तो डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो आई एम नॉट श्योर, बट इसमें अगर डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज हो, कुछ भी हो, सो एक ऑप्शन आपको ये आ सकती है कि आप किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी लॉयर को साथ में बेटर ट्रीट कर सकते हैं, राइट? और उसमें आप इस तरह की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। सो पावर्स जो है वो काफ़ी इनकी एक्सपैंड कर दी गई है। पेनल्टीज जो है वो बताई गई है। फेलियर टू फर्निश प्रेस्क्राइब मंथली स्टेटमेंट, अगर आपकी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो पेमेंट इंटरमीडिएट और कोरियर को, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है ऑन अ मंथली बेसिस, तो उनकी पेनल्टी 5 लाख फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट है और 1 मिलियन फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट है। तो इनकी पेनल्टीज काफ़ी हाई रखी गई है। और वो भी इसीलिए कि इनकी जो एप्लीकेशन है या जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो। Allowing the use of services by an online marketplace or courier to an unregistered person in the course of e-commerce। अब इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस का तो समझ में आता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो एक मार्केट प्लेस होती है जिस पे सेलर जो है वो रजिस्टर होता है, वो अपनी चीज़ें पुटअप करते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है? वो तो इन्फोर्स कर सकता है कि उसको कैसे आप अपनी मार्केट प्लेस की सर्विस अलाउ करें यूज़ करने के लिए। ना कोरियर में क्या होता है कि मैं आज चाहूँ तो मैं किसी के भी नाम पे कोई भी कोरियर बुक करा सकती हूँ। सो अब इसमें जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि कोरियर कंपनीज किस तरह से इसको मॉनिटर करेंगी, क्योंकि क्या उनकी जो ट्रैकिंग के लिए जो कोरियर के जो रिसीविंग डेस्क होती है, क्या उनके पास इतनी नॉलेज होती है, क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो इस तरह से चेक करें कौन रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है, किसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी। सो हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज दिस, दैट्स अ क्वेश्चन। सो कोरियर कंपनीज किस तरह से मैनेज करेंगी, अब ये मुझे फ्रैंकली समझ में बिल्कुल नहीं आया। ई-बिलिटी भी अगर आप जनरेट नहीं करते या टेम्परिंग और मिसयूज ऑफ फोर्जिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, तो 50,000 की आपके पास पेनल्टीज हैं। पावर्स ऑफ ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कंडक्टेड इंक्वायरी। इनलैंड ऑफिसर रेवेन्यू, अच्छा, inland revenue officers conduct inquiry against civil court powers. This includes the ability to summon, examine on oath, and demand documents evidence via affidavit. Now again ये भी जो जिस तरह की इंक्वायरीज भी हैं टैक्स फ्रॉड के लिए या बाकी उसमें, तो इसमें आप देखें तो काफ़ी जो प्रोसेस है वो पावर्स इनकी काफ़ी इन्हांस कर दी गई हैं। और अगर पूरा इसमें वही जैसे मैं बात कर रही थी कि थीम को अगर देखा जाए तो वो उसी तरह की थीम है कि सबसे डंडे के जोर पे आप काम करें, आप सिस्टम को इजी टू इम्प्लीमेंट या आप क्रैक डाउन उनके ऊपर ना करें जिसकी गलती है, जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं करवाई हुई। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी इसमें बताया गया, ये मैं जब शेयर कर लूँगी तो आप देख लीजिएगा, बट दिस इज़ नॉट वेरी वो। नाउ इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी
काफ़ी लोग जो है वो डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट एजुकेशनल एंड डिफरेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट काफ़ी हैं। वो सीईओ और सीएफओ की अरेस्ट्स है कि एक्सप्लिसिट अगर कंपनीज टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं तो इन्होंने कहा है कि सीईओ और सीएफओ को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में वैसे हमारे पास जब ब्रेन ड्रेन का एक चैलेंज चल रहा है एंड वैसे भी अगर सीईओ सीएफओ को ना कैसे किस तरह से वैसे हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टर्स कंपनी की तो ओनरशिप अगर प्राइवेट कंपनी है तो सीईओ सीएफओ को बाज़ दफ़ा उस टैक्स फ्रॉड या परसीव टैक्स फ्रॉड, इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज टैक्स फ्रॉड की भी डेफिनेशन बहुत वाइडेंड है। सो उसमें पता नहीं कि सीईओ और सीएफओ को कोई बेनिफिट भी है टैक्स फ्रॉड में कि नहीं। नाउ अगेन वेदर इट इज एक्चुअली टैक्स फ्रॉड और नॉट, और इट इज अ टैक्स फ्रॉड बाय वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन, अगर उसमें कुछ हो गया विच इन द ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर द टैक्स फ्रॉड, सो दिस इज क्वाइट वेग एंड दिस इस तरह की जो पावर्स हैं वो और भी रेसिपी फॉर डिजास्टर होती हैं, बिकॉज एक मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अरेस्ट का प्रोसीजर है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का है, लेट्स जो प्रोसीजर है उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर कैन डिमांड रिकॉर्ड्स फ्रॉम रेगुलेटेड पर्सन्स, कैन नाउ डिमांड सब्सक्राइबर इन्फो फ्रॉम आईएसपीज, टेलकोज एंड पीटीए फॉर टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल कर लें, इन्फॉर्मेशन आप मांग लें ताकि उससे आप चीज़ें निकालें। बट अगेन जो जो इशू है ना वो ये है कि एक्शनेबल, इसको हम टर्म करते हैं एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। It is not that the FBR does not have actionable information. FBR के पास actionable information होती है. The only thing is that actionable information पे action नहीं लिया जाता. That is the problem. So यहाँ पे भी अगर ये information ले रहे हैं, subscriber info from ISPs, and we are witness to the data leak incidents from the FBR as well, जहाँ पे कुछ cases में data leaks भी हुए. So we need to see कि ये किस तरह से होगा और इसके ऊपर भी जो आम आवाम है उसकी रिलायंस आएगी या नहीं, या इनफैक्ट जो आईएसपीज एंड टेलकोज एंड पीटीए वगैरह की, इनकी पीटीए तो खैर वो है, लेकिन इनकी क्या रिलायंस इस तरह से आएगी, एफबीआर को डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे या नहीं। अच्छा, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मीन्स, ये वही वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है या टैक्सेबल गुड्स की, जिसमें नेसेसरी इक्विपमेंट वगैरह इनको लगाना है प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड वीडियो एनालिटिक्स के लिए, तो ये भी एफबीआर का डिजिटाइजेशन का एक ख्वाब है जिसके तहत इन्होंने ये सब किया है। एंड इस पे देखते हैं कि ये कितना कामयाब होते हैं, बट इन्होंने इनेबलिंग प्रोविजन इधर डाला है। अच्छा, अपील्स में पहला जो ब्लैक लिस्टिंग था, पहले ब्लैक लिस्टिंग में जो अपील लाई करती थी वो चीफ कमिश्नर के पास लाई करती थी, जो ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन ऑर्डर्स थे। अब चीफ कमिश्नर्स की पावर्स को रिमूव कर दिया गया है। नाउ जो पहले अपील्स हैं अगेंस्ट ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन ऑर्डर्स, वो रेगुलर अपेलेट प्रोसेस को फॉलो करेंगी। अच्छा, अब इसमें अपील अगेंस्ट बोर्ड ऑर्डर्स ये भी था, बट ये बहुत ही कम प्रैक्टिकली वो होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने डाली, ये भी एक करेक्शन ही है, क्योंकि जो सेक्शन 45 भी है अपील्स का, उसमें इन्होंने सिर्फ सेक्शन 11 लिखा था, 11 DEFGD लिखा था, जो पहले इन्होंने सेक्शन 11 को तोड़ा था मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो उसको भी यहाँ पे सही किया गया है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म जो है, अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म जो है, इसमें आप देखेंगे ना, ये भी बहुत हार्श अमेंडमेंट है एंड इसमें भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। इसमें चीफ कमिश्नर को पावर दी गई है विद द बोर्ड्स अप्रूवल कि वो ऑडिट फर्म्स को ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को रेफर कर दें फॉर इंस्पेक्शन। और रीज़न फॉर रेफरल क्या है कि अगर ऑडिटेड अकाउंट्स चीफ कमिश्नर के ख्याल में और बोर्ड अप्रूव करता है कि ये ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करते रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स, परचेज एंड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि पहली बात तो ये कि ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी ट्रूली ये किस तरह से, क्योंकि इस ऑडिट में इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट इज़ ऑलवेज अ रीजनेबल अश्योरेंस। कहीं पे भी कोई केस आया जहाँ पर उन्होंने कहा इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आपने लेट सपोज 10% सैंपल पे 10% जो आपकी सेल्स है वो सही नहीं है, तो ऑडिटर के लिए 10% को मैनेज करना या उसको 100% उसके ऊपर अश्योरेंस देना इज़ नॉट पॉसिबल। ऑडिट का जो मैंडेट है, जो स्कोप है, वो लिमिटेड होता है। अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है, मतलब अगर एक ऑडिट, नाउ ऑन वन हैंड द एफबीआर इज अपॉइंटिंग 2000 ऑडिटर्स जो हमने पीछे देखे, यानी एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि इनके यहाँ लोगों से ऑडिट नहीं हो रहा है, ऑडिटर्स की अपॉइंट करें 2000। अब यही लोग जिनसे ऑडिट नहीं हो रहा है वही आपके ऑडिटेड अकाउंट्स को कह रहे हैं सही नहीं है। मतलब
इट्स वेरी अगर इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ तो आप उन्हीं ऑडिट फर्म्स के 2000 लोग उठा रहे हैं कि आप ऑडिट कर रहे हैं हमारी चीज़ों हमारे बिहाफ पे, और दूसरी तरफ आप उन्हीं ऑडिट फर्म से कह रहे हैं कि आपके ऑडिटर अकाउंट सही नहीं है, तो आप इन 2000 लोगों को ही क्यों बुला रहे हैं? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल इसमें ये पैदा होता है कि आप जो एक ऑडिट फर्म है उसने दिन रात ऑडिट 20 साल जितने भी सालों से ऑडिट कर रहे हैं, उसका जो पार्टनर है साइनिंग पार्टनर वो जितने भी सालों से ऑडिट कर रहे हैं 20 साल से, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अपनी ज़िंदगी में यूजुअली इनका मैंडेट ये ऑडिट टैक्स ऑडिट्स या टैक्स ऑडिट्स तो उन्होंने अपने हिसाब से किए होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट्स का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। सो एंड अगेन बोर्ड में भी ऐसे कोई लोग नहीं होते जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का एक्सपीरियंस हो। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, उसके ऊपर प्रेसिडेंस है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की और बोर्ड की, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं किए, उसको वो रेफर करेंगे एओबी को कि आपके सही नहीं है। सो दिस इज क्वाइट हार्श और बहुत ही अजीब सी कोई अमेंडमेंट वो की प्रोपोजिशन है। एंड अगेन इट शोज कि एफबीआर जो है उसका एक ट्रस्ट जो है वो डिफरेंट ऑडिट फर्म्स पे और उस पर डेवलप नहीं हो रहा। एंड आई पर्सनली फील कि दिस इज ये बहुत ही गलत वो चीज़ है और बहुत ही हार्श है। इट्स दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। जो ऑडिटर्स हैं उनको और टैक्स डिपार्टमेंट को अथॉरिटीज़ को मिल के टूवर्ड्स एक बेटर वो काम करना चाहिए कि बेटर कंप्लायंस हो, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो। एनीवे transactions जो है input tax claim disallowed for suppliers to unregistered persons exceeding 10 million per tax period और 100 million financial year, ये अभी इसका input tax claim वो नहीं है। Monetary thresholds are removed, bold will tell that new thresholds with federal minister's approval, ये भी एक वो है कि जो टैक्स नेट में है उसी को ही आप पेनलाइज कर रहे हैं कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ना करें, जबकि ये टैक्स अथॉरिटीज का काम होता है। थर्ड शेड्यूल में कुछ उन्होंने कुछ डाली हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल हमारा होता है रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स पे करने का, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डाली हैं। सिक्स शेड्यूल में कुछ एग्जेम्पशंस जिसमें होते हैं उसमें कुछ एग्जेम्पशंस लिस्ट की गई है, ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। विड्रॉल भी की गई है एंड देन कुछ एग्जेम्पशंस आयरन स्टील स्क्रैप वगैरह की हैं। सिक्स शेड्यूल में फर्दर कोई एग्जेम्पशंस हैं, बट इसको जो है वो इतना बहुत ही स्पेसिफिक है, सो आई थिंक लेट्स नॉट कवर इट इन दिस लिमिटेड टाइम। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसमें छोटी सी जो मेजर चीज़ें हैं ना वो एक ही है, वो दो है सॉरी। एक तो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेसेस विद बोर्ड सिस्टम ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग। अच्छा, इसमें जब हमारे पास वो जो रूल्स आए थे सेल्स टैक्स में, उसमें उन्होंने सब जगह जो रूल्स फ्रेम किए थे उसमें उन्होंने लिखा हुआ था गुड्स का, बट एक रूल में उन्होंने सर्विसेज का भी जिक्र किया हुआ था, तो इसके ऊपर एफबीआर को क्लैरिफिकेशंस के लिए लिखा गया था कि भाई आप बताएं कि ये क्या सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेसेस या सिर्फ गुड्स के लिए, तो आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। तो अभी ये उन्होंने इसमें डालने की प्रोपोजिशन है कि इसको आईसीटी में डाल दिया जाता है। अच्छा, ये वाली जो सेकंड है ये बड़ी स्पेसिफिक है, बट वील टॉक अबाउट दिस। अच्छा, इसमें उन्होंने बोर्ड ने एम्पावर कर दिया है, बोर्ड को एम्पावर कर दिया कि वो एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज बताएंगे। दीज सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन कंडीशंस रेस्ट्रिक्शन पब्लिश। अभी आपने आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने, लेकिन केपी सिंध पंजाब सब ने नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज निकाले। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ टैक्सेबल है, सर्विसेज की डेफिनेशन भी सिंध में तो चेंज हुई है, हर चीज़ टैक्सेबल है एक्सेप्ट फॉर दीज। तो इससे जो काफ़ी डिस्प्यूट्स पास्ट में थे वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी वही सिमिलर काम होता नज़र आ रहा है। एफईडी में भी कोई ख़ास मेजर चेंजेस नहीं है, बस मैं एक आध वो है उसको बता देती हूँ। पहला तो इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2023 में इन्होंने ड्यूटीएबल आइटम्स में एक ई ऐड किया गया था जिसमें एक रेजिडुअल कैटेगरी थी कि एनी अदर फलाना फलाना, बट उसमें ये नहीं था कि हु इज़ लाइबल टू पे ड्यूटी ऑन दीज आइटम्स। सो ये भी एक इन्होंने सबसेक्शन 5 ऐड किया जिसके थ्रू एक करेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। नाउ अगेन ये वाली सेकंड तो मैं ख्याल से छोड़ देते हैं। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर या फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओपन प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय डेवलपर्स और बिल्डर्स, इसके ऊपर उन्होंने एफईडी लगा दी थी 5%, बट ये इसके ऊपर सवाल था कि ये एफईडी किस तरह से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, किस तरह से लगेगी, ये ड्यूटी लगा सकते हैं नहीं, तो इसके वो बहुत सारे सवाल थे, बट वो ज़्यादा इन्होंने अरसे चलाई नहीं और अभी इसको प्रपोज कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरी असल में अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट है, तो मैं बड़े जल्दी मैंने कवर करने की कोशिश की है, बट इवन इन दैट केस काफ़ी लंबा हो गया। And with this, I'd like to move on to the
hand over to the moderator, please. Thank you. समिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. Am I audible? Yes, you're ये audible ऑडिबल now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all our speakers for those insightful and overviews. We now move into our moderated panel discussion, where we all also take live questions from our audience. This session will be moderated by Mr. Abdul Salam, FPFA, FCA partner at Sheikh and Chaudhry Chartered Accountants and convener of the PIPFA Faisalabad Branch Committee. Our panelists consist of 3 persons. Let me introduce them. First of all, we have Nadeem Bhatt, FCA, FPFA. He is a fellow member of ICAP and PIPFA and practicing under the name and style of Nadeem and Co. Chartered Accountants. He is a chairman of Lahore Tax Bar Association, Tax Academy, for a tenure of 2017 to 2026, and also a member of the LCCI Finance Taxation and Sales Tax Committee. He is an advisor to FTO Lahore region for a tenure of 23 to 2026, and a lifetime Lahore Tax and Multan Tax Bar Association member. He is also a member of the LCCI Finance Taxation and Sales Tax Committee. He has more than 25 years of teaching experience. Next panelist is Sir Ehtisham Suleiman Zahid, FPFA, FCCA. He is a fellow member of PIPFA, ACCA, and a member of FTBA. Currently, he is serving as a director and head of taxation and accounting services in Zahid Jamil & Co. Chartered Accountants. Thirdly, we have Sir Muhammad Imran Munir, FPFA, advocate, CMA, FIFA, ITP. Mr. Imran is founder of Mazars Imran Associates, former General Secretary, Faisalabad Tax Bar Association, and President, Professional Tax Forum. Faisalabad, the learned speaker has over 20 years of practice experience in handling tax-related matters. Sir Abdul Salam, over to you. Sir. Thank you. Thank you very much, Ms. Samia. Welcome. I hope we have all panelists on board. अस्सलाम वालेकुम। मेरी सब पार्टिसिपेंट्स से बहुत ज़्यादा उनसे इल्तिमास है कि वो हमारे साथ पैनल डिस्कशन में एंड तक साथ रहें, क्योंकि इसमें जो हमारी डिस्कशन है वो बड़ी फ्रूटफुल और इंटरेक्टिव होगी, और ख़ास तौर पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने पहले से शेयर किए हैं अपनी चैट में, तो वो आप जो है दोबारा से रीसेंड कर दें, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। पैनल डिस्कशन को भरपूर तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि पैनलिस्ट से ब्रीफली उनके व्यूज़ भी लिए जाएं बजट के ऊपर, और पर्टिकुलरली फाइनेंस बिल 2025 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं लाहौर जाऊंगा और नदीम भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, व्हाट्स योर व्यूज़, मतलब आप ओवरऑल बजट को किस तरह देखते हैं, इस पे जरा ब्रीफली हमारे पार्टिसिपेंट्स को जरा आगाह करें। ओवर टू नदीम भट्ट। ये अगर आपका दूसरा भी परसों लगा हुआ और एहसान सा वाला वो 24 वाला वो भी। हाँ जी साहब, ये चेक कीजिएगा, आवाज आ रही है जी? जी आपकी आवाज आ रही है। बस आ रही ठीक है हो आपकी गया, आवाज। ठीक हो जी, ठीक हो जी गया, ठीक हो प्लीज गया। प्लीज मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि जब से ये पिछला बजट आया था, तो अपील आपको पता है कि उसमें उसकी लिमिटेशन, पिक्यूनरी जो लिमिटेशन लग गई थी, तो वो एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इसको वापस इंटैक्ट कर दिया कि अगर आप कमिश्नर अपील से अगर आप केस हार जाते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप आगे जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में, जो कि पहले ऐसे नहीं था, तो लोग बड़े तंग आए हुए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि तीनों लॉज में उन्होंने इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी के अंदर वो पुराना जो
एप्लीएंट बॉडी का फॉरम है आपका, कमिश्नर अपील और फिर ट्राइब्यूनल जो है उसको इंटैक्ट कर दिया है। दूसरी बात है, लेकिन अभी तक ना उसके अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर जो फी है उनकी स्टे के लिए तो 30% है, उसको अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस पे जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगर उसको भी विदाउट एनी कॉस्ट टू दी टैक्स पेयर वो इंटैक्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब आपको पता है अमेंडमेंट इन असेसमेंट था 180 डेज के अंदर, और फर्दर एक्सक्लूजन्स को निकाल के टाइम को, तो उसके अंदर अमेंडेड असेसमेंट जो था वो टैक्सेशन ऑफिसर ने क्लोज करना था। अब इनकम टैक्स में देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो टाइम लिमिटेशन खत्म कर दी जाए, और दूसरी तरफ आप सेल टैक्स में कह रहे हैं कि 120 दिनों को बढ़ा के 180 कर दिया जाए। ये आप करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है, जबकि तीनों ही इनलैंड रेवेन्यू का हिस्सा है। दो बातें हो गई। तीसरा भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना कि ये अभी सिर्फ बिल है, ये एक्ट नहीं है जनाब। तो जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ये फाइनेंस एक्ट बन के पूरी तरह सारी वर्डिक्ट जो है आपके सेनेट से और प्लस असेंबली से और प्लस स्पीकर और प्रेसिडेंट के साइन होके तो ये नोटिफाई नहीं हो जाता। नेक्स्ट मेरे पास है जी, जो मैंने पहले भी सेमिनार फैसलाबाद में किया था, उसमें यह कहा है कि अब आप जितने भी बजट बना लें, जो मर्जी कर लें, सवाल अब यह है कि आप जरा देखें कि आपकी मेजर अमाउंट जा किधर रही है। 8,500 बिलियन का तो आप मार्कअप पे कर रहे हैं, तो क्या आप लोग आजाद हुए हैं? मुझे तो लगता है हम सिर्फ फिजिकली आजाद हुए हैं। जितने पैसे आप लोग कमा रहे हैं वो तो सारे मार्कअप की नजर हो गए हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? फिर इसका मतलब है मेहनत हम करेंगे और पैसे उनको चले जाएंगे। तो ये लोन को और मार्कअप को किसी तरह हमें क्लियर करना पड़ेगा। इसमें एक सजेशन मैंने दी थी कि आप पूरे मुल्क से 5 से 10 बंदे इकट्ठे करें जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो, किसी किस्म का कोई डाउट ना हो, उनको कमेटी का हेड बनाएं उनको सबको, और वो पैसे आप लोगों से इकट्ठे करके सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन और मार्कअप के लिए इस्तेमाल करें, वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल ना करें। अब ये एक्टिव इस पे अमल होता है या नहीं होता, ये अपनी जगह पे रहेगा। अगर नहीं होता तो फिर रोजाना बिजली और पेट्रोल बाकी चीजें इसी तरह ही महंगी होगी जिस तरह आप कर रहे हैं। तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और इसके अलावा जो एक दो चीजें और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा बजट से हटके। वैसे तो पहले जो स्पीकर थे माशाल्लाह उन्होंने सारा कुछ बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। उसमें दो चीजें और हैं जो इस दफा जो कि लोगों ने रिटर्न्स भी फाइल करनी है, बस एक मैं पॉइंट उसमें ऐड करूंगा कि आप 92 सेक्शन को इस दफा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आ गई है कि किसी भी एओपी के केस में अगर उसकी टर्नओवर 300 या मिलियन उससे ज्यादा या पिछले किसी साल में 300 मिलियन से ज्यादा है तो उसको ऑडिटेड अकाउंट देना लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2, 111(4)A भी जेन में रखिएगा, क्योंकि वो भी चेंज हो चुका है कि अगर एफटीआर केसेस में आपकी अकाउंटिंग इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा हुई तो वहां भी ऑडिटेड अकाउंट देना लाजमी होगा, इररिस्पेक्टिव के वो इंडिविजुअल है या एओपी है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो बड़ा अच्छा है, जो सजेशन मैं पिछले 5 साल से देता आ रहा हूँ। देखिए, आपने देखा कि फ्रॉड को एक्सटेंड किया गया, आई को प्लस कमिश्नर्स को, चीफ कमिश्नर्स को, एफबीआर को पावर दी गई। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप इतना कुछ करके भी लोगों को या रेवेन्यू को टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप क्यों नहीं वैट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देते? एक रिड्यूस रेट 5 से 6% चार्ज करें और इनपुट फर्क कर दें, आपका मसला ही खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में आप पढ़ते ही क्यों हैं? सर जी, इतना इतनी लंबा सादा कुछ। सी बात समझ क्यों नहीं आती? हाँ जी, बस यही है ना, कह तो पिछले 5 साल से रहे हैं जी। शायद मेरी जबान सादा नहीं है या लोग सादा नहीं है, आगे पता नहीं, अब ये मुझे पता नहीं है, तो सर ये दोनों ही सादा नहीं है। वन वर्ड में अगर मैं लूं आपसे, वन वर्ड से, मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाने से पहले वन वर्ड में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बजट को? वन वर्ड रिलीफ देखिए, है और जी माजरत के साथ जितना माशाल्लाह उन्होंने तकरीर की हमारे वजीर खजाना साहब ने, वो सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, नेगेटिव चीज तो बताई कोई नहीं। आपको पता चला है कि विद होल्डिंग टैक्स से जो रेट्स है वो सर्विसेज के जो 11% से 15 पे चला गया है। जो गुड्स को नहीं छेड़ा उन्होंने, स्पेसिफाइड जो सर्विसेज है 6 से 8 और 4 से 6 हो गया है, 4 से वो तो 6 कर बताई दिया। कोई नहीं। हाँ जी, वो तो बताई कोई नहीं रहा। स्पोर्ट्समैन का जो कॉन्ट्रैक्ट था जो 10% पे था वो 15% पे चला गया है। ठीक है, तो बात अब ये है कि अगर 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 आपने नए टैक्सेस नहीं लगाए या नया आपने और कोई इंक्रीज नहीं किया, तो फिर पहले 14 अरब से आप 17 अरब पे कैसे चले गए? वो हवा में तो नहीं ना एंट्री पड़ गई थी।
तो सर मैं बहरहाल आपकी बात तरफ अब फिर ये वापस आऊंगा। जी 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 बहुत शुक्रिया। अच्छा एहतशाम साहब, ब्रीफली बजट को आप किस तरह देख रहे हैं? वेरी जी ब्रीफ। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो बहुत शुक्रिया सबका, व्हाट साहब ने सबने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं सोचा था शायद हमारे लिए कोई पॉइंट रह जाए बोलने के लिए, माशाल्लाह व्हाट साहब आज बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो वही बात मैं कंटिन्यू करूंगा जिस तरह उन्होंने इस वक्त जो प्रॉपर्टी का मामला और बैंक का इन्वेस्टमेंट का मामला था, जिसके अंदर उन्होंने पहले तो यही बात करते रहे पूरे बजट में कि जी हमने 3% से 1.5 टैक्स कर दिया है, और यही बातें वो करते रहे। और कहीं पे भी उन्होंने ये चीज़ नहीं मेंशन की कि हम रेट बढ़ा दिए हैं। वो तो 6% ही रहा, उसको 1.5 कर दिया, उसको 4.5 कर दिया। इसी तरह बैंक प्रॉफिट को भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया। वही चीज़ें जो जो पॉजिटिव चीज़ें वो बताना चाहते थे सिर्फ वो असेंबली में वो बताई, और जो बातें ओवरऑल जिसके इम्पैक्ट आया उसको डिस्कस ही नहीं किया। और बाद में चीज़ें सामने आती हैं, स्टिल ये प्रॉब्लम आ रही है। और आई डोंट नो अभी क्या ये चीज़ें फाइनल होती हैं अभी। उनका अभी इस वक्त लोगों का ख्याल था कि प्रॉपर्टी जिस तरह पाकिस्तान में ओवरऑल डिस्टर्ब है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उनका ख्याल था कि टैक्स कम हो जाएंगे तो लोग दोबारा पैसा प्रॉपर्टी में लेके आएंगे। ज़ाहिर एक सर्कल चलता है जिससे ओवरऑल इकॉनमी पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन उन्होंने अगेन वही चीज़ कर दी, और मेरा नहीं ख्याल अभी तक इसका इम्पैक्ट आया है। एनीवे नेक्स्ट इस पे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इमरान मलिक साहब जो कि एक यूट्यूबर भी हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरह बजट को, जी ब्रीफली योर टेक ऑन बजट। सर जी बजट पे तो बड़ी शेर असल गुफ्तगू हो गई, ओवरव्यू देते हैं इस पे। यस मैं सर। ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का बजट था वो बहुत ज्यादा हार्ड बजट था। वो ऐसा अच्छा। बजट था जो कई सालों में शायद एक दफा आया। इस दफा जो हम्म। बजट हुआ है ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस हम्म। बजट का फोकस जो है वो, जो मुझे लग रहा है वो है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है लेकिन उनको हम्म। लाने का जो मैकेनिज्म ये बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं समझ नहीं आ रहा फ्रैंकली। मतलब ये ठीक है। इन्होंने बजट को फोकस रखा है कि उन लोगों को लेके आए टैक्स नेट में जो टैक्स नेट में हम्म। नहीं है, जो ओवरव्यू लगता है हम्म। कि हर जगह पे हम्म। इन्होंने नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वाला टैक्स आपने देखा होगा, ये सारे हम्म। फर्दर टैक्स पे। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है? क्या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर एफबीआर का मुलाजिम है कि वो इसके बिहाफ पे पकड़ पकड़ के उसको बताया कि जी इससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इससे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी परचेज डिसअलाउ हो जाएगी, मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा पेमेंट ऐसे नहीं कर सकता। ये सारे जो मैयर्स हैं बजट के, ये सारे मैयर्स तो ये बता रहे हैं कि आप टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? कोई निजाम नहीं, कोई तरीकाकार नहीं। आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बर्डन डाल रहे हैं कि भाई तू पकड़ पकड़ के लोग हमें बता कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, तो हम उसको रजिस्टर्ड कर दें। ऐसे नहीं होता। यही प्रॉब्लम है, ट्रस्ट का इतना फुकदान है एफबीआर का और टैक्स पेयर का, कि जिस वजह से लोग आज भी एनटीएन लेने से नाला हैं। 13 मिलियन एनटीएन है, 7 मिलियन रिटर्न आती है, 6 मिलियन बंदा बाहर बैठा है। एनटीएन उसने एक दफा बनाया था, कभी गाड़ी ली तो प्रॉपर्टी ली, निकल गया। उसके बाद उसने कहा भाई रिटर्न ना दे के अच्छे हैं, फर्दर टैक्स दे के अच्छे हैं, दे के जो नोटिस और जो कुछ होना है उससे बेहतर है हम बाहर बैठ जाए। तो ये बजट मैं तो इसको फोकस समझता हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, लेकिन मैकेनिज्म की कमी के साथ। ठीक है, मैं आऊंगा इसके ऊपर बात करूंगा सेल्स टैक्स में जो क्रिमिनल टाइप जो चीजें ऐड की गई हैं। लेकिन इमरान मलिक साहब आपके सामने ही मैं एक सवाल रखूंगा टेक्निकल, और इसके ऊपर एम्बिग्विटी है। जितनी कमेंट्रीज मैंने देखी हैं उनके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं आ रही। कल हम बात कर रहे थे, कुछ कराची के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे, वो भी मुझसे इस चीज के मतलब पर्टिकुलरली पूछ रहे थे। तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले रखूंगा। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसके अंदर एक मेजर तब्दीली आपको भी पता है, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज है। तो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के अंदर चार्जिंग सेक्शन जो कि सेक्शन 3 है, उसके अंदर जाके वो एक चेंज लेकर आता है। वो कहता है कि जी 2% विद होल्डिंग, यानी 11 शेड्यूल के मुताबिक जो 2% है वो विद हेल्ड करेंगे। और साथ ही नीचे वो कहता है कि ये फाइनल होगा। आप ये बताएं कि ये फाइनल का जो ट्रीटमेंट है, ये कहीं फिक्स का तो हमने सुना हुआ है सेल्स टैक्स में, ये फाइनल कहाँ से निकल आया है? और ये जो ऑनलाइन सेलर, अच्छा एम्बिग्विटी इस चीज में भी है कि जब आप 11 शेड्यूल के अंदर वो एंट्री नंबर 8 के अंदर जाते हैं, तो वहां पे विद होल्डिंग एजेंट में एक जगह पेमेंट इंटरमीडियरी लिखा हुआ है, और जबकि जहां विद होल्डिंग का जिक्र है वहां पे पेमेंट इंटरमीडियरी भी हैं, कोरियर कंपनीज भी हैं। यानी वहां पे विद होल्डिंग में कोरियर कंपनी को स्किप कर दिया। मतलब ड्राफ्टिंग के भी एरर्स बड़े मैंने तो नोट किए, बजट के अंदर मौजूद है। खैर, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये फाइनल टैक्स को किस तरीके से डील करेंगे? क्योंकि एक तरफ आप सामने रख लें, ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसको काम ही नहीं करने देना, मतलब इसमें तो क्लैरिटी है। तो अब वो 2% डिडक्ट करके फाइनल हो जाएगा, उसने सेल टैक्स वाली इनवाइस 18% की वो भी करनी है। तो क्या ये 18+2 20% पे है? इसको किस तरह आप देखते हैं, और ये किस तरीके से काम करेगा?
अच्छा देखें, इसमें एक तो दो हिस्से हैं आपके क्वेश्चन के। नंबर वन क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये है कि जो इसमें एम्बिग्यूटीज हैं, वो एम्बिग्यूटीज मेरा ख्याल है जैसे भट्ट साहब ने भी फरमाया कि ये बिल है, इसको एक्ट बन लेने दें, तो बहुत सारी चीजें तब तक क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं भी होगी तो वो किसी एसआरओ में क्लियर कर देंगे। मेन कंसर्न ये है कि सेल्स टैक्स में फाइनल टैक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सेल्स टैक्स में फाइनल टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आया है मेरा ख्याल है, रिसेंट पास में। जो भी रिसेंट पास में हम देखते हैं जहाँ पे इन्होंने 1% लगा के कहा था कि जी ये फाइनल है, ये आपका एडजस्ट नहीं होगा। सवाल ये है कि रिटेल सेक्टर में फाइनल टैक्स किधर से आ गया। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का जो बंदा है वो तो रिटेल सेल कर रहा है, वो तो एंड कंज्यूमर को चीज बेच रहा है। एंड कंज्यूमर को जहां बेच रहे हैं, इसका मतलब है आपने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है अपनी कलेक्शन पूरी करने के लिए, एक्स्ट्रा टैक्स। ये कोई आप ये सिर्फ डिकोसला या फाइनल फाइनल का वर्ड सारा, इसमें क्या फाइनल है? फाइनल का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे। देखें, अगर वो अपनी पूरी सेल जो कि उसकी बैंक में आती है कोरियर कंपनी के जरिए, उसमें 2% दे देता है, तो कहाँ कहीं लिखा है कि आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे? उसे पूछेंगे नहीं सेल टैक्स के बारे में कि तूने परचेज किससे की, तूने सेल किसको की? तो ये तो एक अजीब सा इन्होंने एक ना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कानून पहले ही इतने बनते हैं, एक सेक्शन दूसरे से हिट हो रहा होता है, और ये तो एक उसकी बड़ी वर्स एग्जांपल है। एक तरफ आप उसकी परचेज का मैकेनिज्म स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, इनवॉइस की वेरिफिकेशन करते जा रहे हैं। जाहिर है उसने जब माल बेचना है तो लेना भी तो है ना किसी से, तो परचेज इनवॉइस उसके सिस्टम में आनी, जिसका मैकेनिज्म। फिर दूसरी तरफ आपका नेक्स्ट वो C1 आ रहा है, पेमेंट का मैकेनिज्म। 36 चीजें आपने डाल दी। और फाइनल टैक्स का कॉन्सेप्ट था क्या? फाइनल टैक्स का कॉन्सेप्ट यही था ना कि एक दफा टैक्स देते हैं, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। तो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ये कैसे बनी? ये तो आपने सिर्फ कलेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। मैं नहीं समझता कि इसको फाइनल कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट से मैं इल्तमास करूंगा, जो ये पेनल्टीज है ना, जैसे कि जी कितनी पेनल्टीज लगी हैं और क्या है, वो तो प्रेजेंटेशन में आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी पैनलिस्ट ने उसको हिफ्स नहीं किया होगा। मोटी मोटी तो सबको कुछ को याद होंगी। आपके जो क्वेश्चन है ना, तो वो काइंडली वो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करें। और अगर आप डायरेक्टली हमारे पैनलिस्ट से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दें, आपका माइक अनम्यूट कर देंगे और आप क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा दोबारा नदीम भट्ट साहब के पास। सर, एक सेक्शन 21 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसके अंदर हर बजट के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। और इस मरतबा भी आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। एक तो उन्होंने वो जो फार्मूला था उसको स्ट्रेट अवे 10% कर दिया, और एक 21S उन्होंने डाल दिया है। अब 21S के अंदर उन्होंने वो कहा जी कि आप कैश से जो 2 लाख से ऊपर है उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है, तो हम आपका 50% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे इसको डिसअलाउ करेंगे? यानी ये एक आर्बिट्रेरी डिसअलाउ, मतलब वो स्ट्रेट अवे उसको कर देगा, या वो एक एक ट्रांजैक्शन 2-2 लाख वाली वो कैसे उसको ऑडिट में चेक करेगा? ओवर टू नितिन। देखिए, हमने भी जब डिस्कशन की है ना, तो इशू ये आ रहा है कि एक तरफ हाँ, पहली बात तो कि डिटेल्ड, एक तो ये पहले एक्ट बन जाए, फिर इस पे डिटेल्ड सर्कुलर आएगा। उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये उसमें जरूर सेट करेंगे चीजों को कि 10% जो एक्सपेंडिचर है, आप जो है वो सिर्फ परचेज की बात हो रही है, ये बाकी एक्सपेंडिचर भी शामिल हो रहे हैं। दूसरा जो सेल वाला है उसमें भी ऐसे 50% ऑफ द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है। अब एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ सेल भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। आप किसी बात कर रहे हैं तो वो उनको क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वर्किंग एक एग्जांपल बना के उनको बताना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो पहले इतनी लिमिटेशन लगी हुई है, जैसे अभी बता रहे थे इमरान साहब कि आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। सारा जिम्मा आप सिर्फ कंप्लायंट टैक्स पेयर पे डाल रहे हैं। बहरहाल आपके सवाल का फिलहाल तो जवाब ये, बाकी कोई और है तो देख लेते हैं। ठीक है। एहतशाम साहब, आप अवेलेबल हैं हमारे साथ? जी सर, बिल्कुल जी सर जी। अच्छा एहतशाम साहब, सेल्स टैक्स का नक्शा जो है वो चेंज होता जा रहा है, आपने भी इसको देखा है। अभी हमारी जो वर्थी स्पीकर थी तहा बुकाई फ्रॉम कराची, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने देखा है उनको जगह जगह उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि जो भी लोग टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो इसमें इंगेज हैं, उनको पता है इस चीज़ का कि ये जो मेयर्स हैं ये बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये सूदमंद नहीं है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है, जो FBR है, जैसे रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसका काम रेवेन्यू कलेक्शन है। ये क्या जी करने जा रहे हैं? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं, जो FBR ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती थी कि FBR को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको क्या बनाने जा रहे हैं? मजिस्ट्रेट बनाने जा रहे हैं? उसको जो पावर्स दी जा रही हैं कि वो, एक तो लिखा ये भी हुआ है कि 37AA के अंदर मैं देख रहा था, वहां वर्ड लिखा हुआ है अर्जेंसी,
कि अगर उसको अर्जेंसी है तो अर्जेंसी बेसिस के ऊपर वो 24 आवर्स के लिए उसको बंदे को जो है वो अंदर कर सकता है। वो अर्जेंसी को कैसे आप डिफाइन करेंगे 37AA के अंदर? और उसके अलावा इसके ऊपर आपका क्या मौकिफ है कि जो ये अब जो रेवेन्यू अथॉरिटी जो कि रेवेन्यू कलेक्शन की बॉडी है वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इससे? हर हर काम के लिए एफबीआर बार लगाएगा, हर काम के लिए पहले एफबीआर से पूछें, और ये जो अननेसेसरी पावर्स हैं इसको खास तौर पे आप कैसे इसको देख रहे हैं? वैसे सर एक्चुअली जो सेल टैक्स के अंदर इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ डे बाय डे जो जिस तरह उन्होंने सेक्शंस को टाइट करते जा रहे हैं सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, पूरे फ्लो को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बल्कि इससे करप्शन बढ़ती जाएगी मेरे हिसाब से। और जो चीज़ें पहले भी हम इनवाइसेस के इशू के अंदर लोगों को अनरजिस्टर्ड बंदे बहुत ज़्यादा हैं और वो चीज़ फ्लो पूरा चेन नहीं बन रही, तो लोग अपने इनवाइसेस को पूरा करने के लिए उसको उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ परचेज करने के चले जाते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें अभी भी वही बात है कि अभी ये चीज़ इतनी इसके ऊपर इतनी मेरे ख्याल में डिबेट करना बेहतर नहीं होगा जब तक कि वो चीज़ कानून बन जाए। स्टिल ठीक है। अब जितना ज़्यादा वो सेल्स टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कानून को लेके आ रहे हैं, ले मैन के लिए भी मुश्किल है, बिजनेसमैन के लिए भी चीज़ें मुश्किल है, समझनी मुश्किल है। एनीवे हम इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक है। टाइम दें और एक्ट बन जाए फिर इसमें बेहतर है हम अच्छे तरीके डिस्कस कर सकें हम। ठीक है, हमारे साथ जो है वो एक पार्टिसिपेंट है अब्दुल सलाम जान साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो जी। ये कि ये जो जो प्रोविजंस माशाल्लाह एक्सप्लेन किए हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ बन गया है कि जो इश्यू सिविल लॉ के हैं वो क्रिमिनल हो जाएंगे? क्योंकि हम तो मेरा ख्याल है वो जो अपने टाइम पे डेफिनेशन पड़ी थी वो भी अब हमसे खो गई है कि किधर। और दूसरा ये कि एफबीआर भी प्रेजेंट कर दिया करे बजट, तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा। फजूल में मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया, आप लोग गिला कर रहे हैं कि जी उसने रिलीफ मेजर्स बताई हैं लेकिन रेवेन्यू मेजर्स नहीं बताई, तो उस बेचारे का कसूर ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन तो मेरा ख्याल है एफबीआर चेयरमैन साहब ही खुद ही करते तो बेहतर था। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जी। कि जब आप एक स्टेक होल्डर, जिस तरह सलाम साहब ने कहा कि वो टैक्स कलेक्टर है, आपने उसको लॉ मेकिंग पे लगा दिया, तो ये सवाल पार्लियामेंटेरियन से भी बनता है कि जी वो आप लोग किस चीज को पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर बहस राइट। भी होगी, सब कुछ है, लेकिन वो क्रिएट किसने किया? ये तो आराम से ऐसा रोज कर लेते, फाइनेंस सेट करने की क्या जरूरत थी? इमरान साहब ने भी बड़ा अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन किया कि समझ ही नहीं आ रही कि कर क्या, करना क्या चाह रहे हैं। या लास्ट टाइम मुझे नदीम साहब ने चुप करा दिया था कि यार पाकिस्तान में टैक्स देना चाहिए। मैंने बोला था लास्ट टाइम भी हम इधर ही इकट्ठे थे, तो मैं चुप हो गया था और मैं अभी मजीद चुप रहूंगा कि जी बस टैक्स ही देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है उधर से भी कुछ सर होना चाहिए, क्योंकि लोग इस तरह चलते जाएंगे तो सीएफओ को आप उठा लेंगे तो पीछे सिस्टम क्या रहेगा। तो बस ये मेरा था कि क्रिमिनल की साइड पे हम चले गए हैं या सिविल में ही है अभी। और दूसरा एफबीआर का रोल ठीक है। कैसे इसको रोका जाएगा? ये तो रोकने का नाम ही नहीं ले। ठीक है। ठीक है, नदीम भट्ट साहब की तरफ जाते हैं, और ये अब्दुल सलाम जान साहब के जो कमेंट्स हैं इसके ऊपर आपने ही करना है जो भी रिप्लाई है, लेकिन साथ एक क्वेश्चन मेरा ले लें। वो ये है कि अभी जैसे हमारी स्पीकर ने भी बताया, ऑडिट फर्म की जब बात की जा रही थी, जो नई सेक्शन है 58C, जिसमें ऑडिट फर्म की इंस्पेक्शन है, और उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि ये कैसे हो सकता है कि नॉन एक्सपर्ट जो है एक्सपर्ट बंदे का काम को रिव्यू करे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्या यहाँ पे भी एक ड्राफ्टिंग गलती हुई है? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को मामला रेफर किया जाएगा। हमने तो यही सुना है कि आई कैप में मामला रेफर होते हैं और आई कैप उसको देखता है, तो यहाँ आई कैप किधर है? हमारी मतलब बॉडी किधर है जो इसको देखा जाना है? और ऑडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करते, किसी हद तक आईसीएमए वालों को भी राइट्स हैं। और वो जो कंपनीज ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को रेफर होती हैं वो तो सर पीआईसीज होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं या दूसरी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो क्या सिर्फ उनके मामला ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को जाएंगे? बाकी जो फर्म्स हैं जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनका मामला फिर नहीं रेफर होगा? जी नदीप भट्ट साहब। देखिए, बात यह है, आपको दो तीन चीजें पहले मैं शेयर करता चलूं। जब आप भी ऑडिटर हैं, सलाम जान साहब भी ऑडिटर हैं, पेशावर में दोस्त हैं हमारे बड़े अच्छे। बात ये हो रही है कि
आप पहले एक पॉइंट नोट करें, ये मैंने नोट किया था, वो ये कि जब हम ऑडिट करते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑडिट एंड स्पेसिफिक ऑडिट। जब आप एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे तो अब लोगों को, ऑडिटर्स को तो पता है कि वो अपनी साइट को प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं। हम मैनेजमेंट से लेते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसमें ये लिखा होता है कि जितनी सेल है, परचेज है, बैंक्स हैं, एंट्रीज हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सब कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मुकम्मल है। तो वो तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हमें लिख के दिया हुआ है कि भाई वो सारी चीजें हम आपको मुकम्मल दे रहे हैं। अब अगर कल को वो कहता है जी मेरा एक बैंक अकाउंट निकल आया है, तो जो आपने रिकॉर्ड मुझे दिया है उसमें वो बैंक आ ही नहीं रहा, या वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही, या कोई अकाउंट नहीं आ रहा, कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसमें हम उसको रिप्रेजेंटेशन लेटर ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बोथ साइड से हम कोर्ट में किसी को भी, अगर ये अप्रूव होता है, पहली बात तो ये है, फिर वही बात है। दूसरी बात क्या है, वो जो 58 सी आप कह सर रहे हैं, ये अप्रूव नहीं होगा या होगा, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे नहीं आपके नहीं, पास। ये अंडर अभी डिस्कशन है। आपकी कमेटी जो है सेनेट की, उस पर डिस्कशन हो रही है। अनोमली कमेटी भी बन गई, आपको पता है, आई कैब ने इनकम कोई टैक्स। इसके ऊपर अपना दिया है रिस्पॉन्स? आई कैब जी, अब देखे ना 22 को उनको उन्होंने फाइनल इस पे वर्डिक्ट देना है कि क्या हमने इसको इन करना है, आउट करना है, अमेंड करना है, अल्टर करना है। वो 22 तारीख ठीक को है, इंशाल्लाह ताला पता लगेगा। अनोमली कमेटी ठीक है, दोनों की बन गई है। एक बात, ठीक ठीक रिप्रेजेंटेशन लेटर मैंने आपको बता दिया। अब जहां तक बात है कि पावर्स की, देखिए बात ये है, जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आया था तो मैंने भी आपके गुजरांवाला में मैरियन होटल में पूरे पाकिस्तान के लिए सेमिनार किया था। देखिए आप मुझे तो डराई जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब बंदा कोई असेसमेंट करता है, वो असेसमेंट उसकी ऊपर जाके पहले दूसरे फोरम पे जाके 2 3 4 5 लगातार उड़ जाती है, तो उसके लिए तो कोई आप लीगल एक्शन नहीं ले रहे। सारा बर्डन तो आप करने वाले पे शिफ्ट करी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप इतनी आसानी से किसी बंदे पे कोई एलिगेशन लगाएंगे, तो कल को तो वो बंदा भी आप पे एलिगेशन लगा देगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ है आप पे, कि आप साबित करें कि इसमें कोई फ्रॉड है या इंटेंशनली कुछ किया गया है। तो इतना सीधा ये भी नहीं है। और ना, हाँ अलबत्ता ये है कि जो लोग गलत काम करते हैं, ओबियसली जिन्हों जो जो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस में इन्वॉल्व हैं लोग, चाहे वो किसी तरफ भी बैठे हुए हैं, उनको तो ओबियसली पकड़ दकड़ होनी चाहिए, ताकि कोई चेक एंड बैलेंस जो है ना, वो किसी हद तक जो है वो प्रिवेल कर सके। इसलिए तो मैंने आपको कहा सिंगल डिजिट आप कर ले। आप यूके की तरह, आप हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जी पीआरए को 5% सेल टैक्स देते हैं विदाउट इनपुट टैक्स के। आज तक 5 6 सालों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। जब आपको एक टोकन अमाउंट है 5% पे करना है 100 रुपए में, तो क्या मसला है। लेकिन जब आप 18+4% और फिर आपका अनरजिस्टर्ड सेक्टर, इतनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो पूरे लोग नेट में भी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आप बढ़ाई जा रहे हैं। और एक और बात आखिरी, आपको अल्टीमेटली मिलता भी 6 7% ही है, तो इतना कुछ करके भी 6 7% ही मिलना है, तो रेट को रैशनलाइज कर ले, मेरा ख्याल है सारे मसले हल हो जाते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा, इमरान मुनीर साहब की तरफ। इमरान मुनीर साहब, आप फिर सेल टैक्स का एक क्वेश्चन आ गया है, तो मेरे ख्याल में आपके पास तो सेल टैक्स में एक हैरानकुन चेंज है 8B के अंदर। जो पहले भी हम देखते हैं कि जो एक ज्यादती का ऑलरेडी फैक्टर तो चल ही रहा है, 10% आपको नहीं मिलता, और राइटली मेरे ख्याल में पहले 1 2 दफा इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होने की कोशिश हुई थी, कोई लिस्टेड कंपनी को दे दिया जाए 100% इनपुट, लेकिन वो फिर बाद में वो भी वापस हो गया। अभी जो उन्होंने किया ये रिस्क बेस्ड एडजस्टमेंट, पहले तो आप अपने नजरिए से भी बता दें कि क्या, अब जैसे उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें नहीं पता कि इसका क्या होगा, क्या ये किस तरह का सिस्टम होगा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह का सिस्टम होगा? नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की जो चेंज है, ये चेंज क्यों लाई जा रही है? यदि देखिए, एक इनपुट जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंट्रोल्स मौजूद हैं, यानी सस्पेंडेड वाले बंदे से आप इनपुट नहीं ले सकते, ब्लैक लिस्ट से नहीं ले सकते, सो ऑन। अब क्या कुछ रह गया है कि जो राइट इनपुट जो कि हमारे पोर्टल पे आ चुका है, उसमें भी जो है वो उसको डेफर कर दिया जाए, उसको नहीं एडजस्ट हम कर सकते? ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले एक चीज समझे, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए आप लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे तो आप एक्सपोज होंगे। सीधी सी बात है। इनसे सारा जोर लगा के आज तक फेक फ्लाइंग इनवाइसेस का कोई भी ऐसा प्रॉपर लायामल या मैकेनिज्म नहीं बन सका जिससे ये इनवाइसेस को रोक सके। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस दफा अपनी तरफ से ये बाजार बड़े संजीदा हुए। आपको याद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वजीर खजाना ने चेयरमैन एफबीआर के साथ बैठ के की थी, जिसमें उन्होंने एक पूरी स्लाइड बना के बताया था कि टैक्स चोरी होती कैसे। बंदा है खुदा, अगर आपको इतना पता है तो रोको ना उसको। उसकी बजाय आप क्या कर रहे हैं? अब जो मुझे लग रहा है, मेरी अप्रीहेंशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ,
कि जो ये मैकेनिज्म रिसेंटली आया है ना नेक्सचर्स का, जिसमें एक जगह पे आपकी वैल्यूएशन कैलकुलेट हो रही है कंजम्पशन के साथ, एक जगह पे आपका परचेज जो है वो वेरीफाई हो रही है एचएस कोड की डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, और आप जो एचएस कोड ले रहे हैं वही आगे दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को क्लब करके ना बैक एंड पे आपकी परचेज का कोई स्क्रूटनी का सिस्टम लगा देंगे जो ऑटोमेटिक उसको स्क्रूटनाइज करता चला जाएगा, और ये जो रिस्क बेस्ड है जहां पे उसको डाउट होगा कि ये आइटम इस सेक्टर में बंदा रजिस्टर्ड है, उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी के साथ अटैच करके इसके एचएस कोड को, प्रोडक्ट लाइन को और सेल को, तो इस तरह का मेरा ख्याल है ये मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है, जिसने करना है उसने इस चीज को तो बाईपास बड़े आराम से कर लेना है। आप रूट कॉज खत्म करने की बजाय, व्हाट्सएप ने बड़ी खूबसूरत बात की है, हम लोग पिट रहे हैं कितने सालों से कि यार इसको सिंगल डिजिट करो, जान छुड़वाओ। व्हाट्सएप यकीन करें कोई ना कोई अंदर लूप होल, इनके अपने मफादात हैं जिस वजह से ये नहीं कर रहे, वरना ये हमसे ज्यादा सियाने हैं। जो ऊपर बैठे हैं इनके पास हमसे ज्यादा फिगर हैं, हमसे ज्यादा स्टेटिस्टिक्स हैं, इनको पता है। सारी दुनिया पागल है जो 5% 6% वैट ले रही है। हम ज्यादा सियाने हैं उस दुनिया से कि हम 18% और 4% लगा के बैठे हुए हैं, और इस तरह के मैकेनिज्म, रियल टाइम इनवॉइस वेरिफिकेशन, रिस्क बेस्ड असेसमेंट, 73 की कंप्लायंस और अल्लाह जाने क्या बला बला, हमने 64 सेक्शनों का सेल टैक्स एक्ट है छोटा था, उसको बना हमने इतनी बड़ी बला दिया हुआ है। हर दूसरे दिन एक एफआईआर हो रही है, इंटेलिजेंस वाले अलहदा लेके बैठे हैं, एफबीआर खुद लेके बैठा है, कभी 11 का नोटिस है, कभी 25 का ऑडिट है, कभी फलाए कर क्या रहे हैं भाई ये, अपनी नाअहली छुपा रहे हैं सिर्फ, सीधी सी बात। ठीक है। और ये सिस्टम अच्छा मेरे ख्याल में इसी को सिंक कर रहे हैं जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई जी हैं, इसकी बेस पर रिस्क बनाने लगे हैं। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है कि पैनलिस्ट से वो जरा ब्रीफ आंसर्स देते जाएं क्योंकि हमारे पास अब टाइम शॉर्ट है। एहतशाम साहब आप अवेलेबल हैं? पार्टिसिपेंट्स अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे काइंडली वो हैंड रेज कर जी सकते हैं। सर, एहतशाम बिल्कुल साहब अवेलेबल। आपके पास शॉर्टली 2 क्वेश्चंस मैं रखूंगा। एक तो आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर बहुत गुफ्तगू करते हैं, तो जी आपको इस बजट के ऊपर क्या नजर आया कि ऐसा कि जिसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के मुतालिक, और जो 114 सी को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, क्या ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का मैयर है या कुछ और है? जी एहतशाम साहब। तो ब्रॉड न्यू टेक्स्ट पे तो बहुत दफा बात हुई है कि हम तो उसी पे बेस कर रहे हैं। कुछ कुछ 50-60 लाख फाइलर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर 1 करोड़ में मैक्सिमम, जितने लोग, जो इतनी ज़्यादा आबादी है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और वो नॉन फाइलर हैं और बिजनेस ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे, उसके ऊपर तो एफबीआर बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही। अगर आपने इस ब्रॉडनिंग की बात करनी है तो उन पे फोकस करें ना। हम एक ही जो बंदे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी निचोड़ रहे हैं, उन पे ही हम प्रेशर डाली जा रहे हैं, जिससे वो इरिटेट हो रहे हैं। वही बात आती है, ब्रेन ड्रेन की बात आ जाती है, फिर लोग बाहर निकलते हैं और फिर नेगेटिविटी सोचते हैं। कोई बंदा पॉजिटिव तब सोचेगा ना। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी भट्ट साहब की भी और इमरान साहब की भी, जब हम चीज़ों को लिमिटेड कर देंगे, जैसे टैक्स, सेल टैक्स 1 डिजिट में लेके जाएंगे और इनपुट खत्म कर देंगे, तो सबसे बड़ा मसला वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उस तरफ जा सही ही है। नहीं रहे, या किसी पर्पज की वजह से, किसी मफादात की वजह से। तो 114 इसकी सी वजह को आप 114 सी को आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे एक गुफ्तगू हो रही है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले आपको पता है कि अमेंडमेंट लॉ के अंदर इसके जरिए से लाने की कोशिश की, अब इसको बजट के जरिए से, तो क्या इसको लीगली यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट देता है मतलब पाकिस्तानीज को कि वो गाड़ी खरीद सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, उसके ऊपर भी महकमा जो है वो पहले उससे अप्रूवल ली जाए, क्या आप इसको जी देखते जी। हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये जाएगा, रिट इसके ऊपर जाएगी या इसको हिट होगा ये अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली? आई थिंक ये चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले भी आपको व्हाट्सएप की डेफिनेट नॉलेज में होगा सर। ये पहले भी देखें हुआ था, प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 40 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता नॉन फाइलर, और 800 सीसी से ज़्यादा ऊपर गाड़ी नहीं बाई कर सकता। तो उसके ऊपर जो इंडस्ट्री थी प्रॉपर्टी की और ये गाड़ियों की, उन्होंने फिर गवर्नमेंट में प्रेशर डाला एफबीआर पे कि आप हमारा कारोबार क्यों डिस्टर्ब करते हैं, आप अपनी अपनी इंक्वायरी करें, आप हम अपने तौर पर टैक्स इकट्ठा करें, हमें बिजनेस करने दें। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने टैक्स को डबल कर दिया नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर को हाफ कर दिया। जब आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी पे उन्होंने कहा, जब उन्होंने 40 लाख वाली लिमिट खत्म की थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम एक, पहले तो स्टार्ट हुआ था 1% और 2%, फिर उसको बढ़ाते रहे 2 और 4, इसी तरह गाड़ियों पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी कि, और लेकिन देखें इसके ऊपर बात यह है कि जब हम उसके ऊपर, अगर हम बात करते हैं कि आप इसी तरह कारोबार रोक देंगे या प्रॉपर्टी हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री से, वो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर बहुत स्वीयर एक्शन आएगा, और मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ अप्रूव हो सकती है। ठीक थैंक है, यू। क्विकली लास्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास सर। एक तो 122 के अंदर जो है, नदीम भट्ट साहब की तरफ मैं जाऊंगा, तो 122 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसमें वो 180 डेज को खत्म करके, तो अब क्या देखते हैं कि अनलिमिटेड है? इसी के साथ आप दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लें
कि 138 के अंदर इमीडिएटली पेएबल, अब उसको पहले तो आपको पता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए से मुतारुफ करवाने की कोशिश की और अब उसको भी बजट के अंदर ले आए, और साथ एक क्लैरिफिकेशन भी दे दे कि सेक्शन 151 के अंदर प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो टैक्स था वो 15% से तो बढ़ा के उसको 20 कर दिया है, लेकिन सैलिएंट फीचर के अंदर कहीं लिखा था कि उसकी जो इंडिविजुअल और एओपी के ऊपर जो 5 मिलियन की 7B सेक्शन के अंदर 5 मिलियन की जो फाइनल की एक लिमिट है उसको भी वो खत्म कर रहे हैं, मतलब ये कि वो सारे का सारा फाइनल में रहेगा, उस पर भी क्लैरिफिकेशन दे दें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके। जी मैं पहले क्वेश्चन का क्लैरिफाई कर दूं। ये जो इनएलिजिबल पर्सन है ना, इसकी जो उन्होंने असल में दो कंडीशन रखी। एक, अब फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनएलिजिबल पर्सन का मतलब है कि एक तो उसने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल की हो जो ड्यू थी, और दूसरा उसके पास एनफ सोर्सेज अवेलेबल हो जो उस एसेट या इन्वेस्टमेंट या गाड़ी को खरीदने के लिए। तो ये वो एटीएल नॉन एटीएल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। पहली बात तो ये। अब आते हैं वापस 122 अल्लाह करके, तो ये इंपोर्ट हुआ था सेल टैक्स से कि जी 120 दिन था जो बढ़ के 180 पे गया। कोई चेक एंड बैलेंस लगा के 122/9 का नोटिस इश्यू होने के बाद इतने दिनों के अंदर एक्सक्लूजन को निकाल के फैसला कर दें। अब अगर आप वो फिर उसको ओपन कर देंगे तो पहले एक तो अभी अब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेना। आज 2025 साल है, 30 जून 25 खत्म होने वाला है, तो 2019 के फैसले अभी हो रहे हैं। अब वो हमारे भाई हैं, ठीक है, अब उनको भी इतना लोड और वर्क है कि वो उन क्लोज कर रहे हैं, चाहे वो 161 है या 122 है। तो ये तो अब वो तो हो नहीं रहा, इसी वजह से वो अपनी टाइम को ना ओपन करना चाह रहे हैं कि जब मर्जी जाए हम इसको फैसला कर लिया करें, जो कि टैक्स पेयर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। ये आपका 122 वाला। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन डेट वाला। देखिए प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना, वो सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हद तक वाला है। जो नेशनल सेविंग सेंटर है वो अभी भी 15 ही है, ये जरा ध्यान में रखिएगा, वो 15% पे ही है। हाँ, अब जो लिमिट है वो इन्होंने प्रपोज तो की थी, लेकिन बिल के अंदर वो 50 लाख की लिमिट जो खत्म की है वो नजर नहीं आ रही। मे बी वो एक्ट जब आए तो वो एनोमली कमेटी उसको आइडेंटिफाई करे तो शायद वो आ जाए। और आखिरी आपका बहुत जो शुक्रिया था जी जी। जी जी 138 138 की रिकवरी में देखिए बात ये है, वहां पहले अब वर्डिंग जाके देखे, वो ये कह रहे हैं कि एपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो दो कंडीशन उन्होंने ला के अगर कोई प्रिंसिपल पहले सेट हो गया है और आप उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट भी कोई फैसला हो जाता है, प्रोवाइडेड, अब ये कौन तय करेगा कि मेरा जो फैसला हुआ है वो जो पैरेलल केस पहले सेट हुआ उसके मुताबिक मेरा सारा कुछ केस उसी सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स के मुताबिक है। तो जैसे वर्कर्स वेलफेयर फंड, एक बात कर लेते हैं, एक बंदे को वर्कर्स वेलफेयर फंड लग रहा है जो कि सूबे ने पीआरए ने इकट्ठा करना है, तो उसमें तो कोई बीच में कोई लड़ाई नहीं रह जाती ना कि जी अब आप क्यों नहीं पे करेंगे। पहले सूबों का डिस्प्यूट था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया। तो बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज आप, सुप्रीम कोर्ट की ये भी जजमेंट है कि एक प्रिंसिपल आप तमाम केसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आपको चेक करने पड़ेंगे, अगर वो सिमिलर होंगे तो फिर आप, और कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर, तो फिर आपके अगेंस्ट रिकवरी हो जाएगी। एक और भी चीज है, अगर आप लोअर फोरम पे केस जीते हुए थे, डिपार्टमेंट अपील में जाता है, जीत जाता है, तो साथ उसने ये भी लिखा हुआ है कि क्लियर कट 7 डेज एटलीस्ट आपको दिए जाएंगे, तब रिकवरी प्रोसीडिंग की जाएगी। 138 और 140 दोनों सेक्शन में आप जाके सिमिलर ये अमेंडमेंट है उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अभी ये प्रपोज्ड है, इस पे भी बात हो गई। अब लेट सी के इसको वो अप्रूव करते हैं या इसमें कोई अमेंडमेंट ठीक करते है, हैं। जी वो तो एक्ट पे सर इंशाल्लाह ताला फिर जी इंशाल्लाह आपको ताला, जी जी दावत देंगे तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। इमरान वली साहब, आखिरी जी जी आखिरी ठीक। क्वेश्चन, सैलरी जो सैलरी जो क्लास है वो 400 बिलियन का रेवेन्यू देती है। इमरान वली साहब, क्या होने जा रहा है? पेंशन टैक्सेबल हो रही है और सैलरी के अंदर मार्जिनल सा रिलीफ है, लेकिन उसी के साथ साथ पेंशन को टैक्सेबल कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? सर जी, पेंशन वाला जो सीन है ना, ये वैसे मेरा ख्याल है ज्यादती है। सारा मुल्क टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपने पहले भरमार की हुई है। तो उन मतलब लोगों को जो जिनका गुजारा ही पेंशन पे है, मेरा ख्याल है ये कुछ ना हार्ड मैयर है। और इसमें देखें एक अजीब सी स्लैब डाल दी है कि जी 70 साल के बाद जाके फिर नहीं लगेगी। मतलब अब पहले तो गारंटी लेके आए ना आपके, आपने 70 साल जिंदा रहना है, उसके बाद अगला काम करें। दूसरा जो रिलीफ दिया गया है वो ठीक है। छोटे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है।
जिसमें 20-22 लाख तक जिनकी एनुअल सैलरी है उनको थोड़ा सा रिलीफ है। ऊपर वालों को तो वो जो सरचार्ज में से 1% कम किया है वो तो मतलब ना होने के बराबर है। ये मतलब एक धोखा दिया गया एक तरह से। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी यही क्लास है। असल में सैलरी क्लास में से जो चीजें निकल रही हैं वो इन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की या एमएनसीज के एम्प्लॉयज की निकल रही हैं, जिनकी सैलरी 100% टैक्स डिडक्शन के बाद आती है। 37%, 37.5% सैलरी देना है तो ज्यादती। ये काफी हार्ड मेजर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ इसमें दिया गया, ये सिर्फ डिकोर्स है। बहुत शुक्रिया। मैं जो पैनल डिस्कशन है इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और एमओसी सैयदा समिया हारून उनकी तरफ जो है वापस जो है वो जाता हूँ। ओवर टू सैयदा समिया। थैंक यू। मैडम ऑडिबल नहीं है, काली तरह माइक चेक कर लीजिए। Audible? जी ऑडिबल है। Okay. Thank you so much, sir. Thank you all our expert speakers and panelists for generously sharing their knowledge and time. And to our audience, your engagement and questions make this a rich and valuable discussion, whether you are in business, politics, or just sharing out our economics. Okay, now I invite Sir Ahmed Suleiman Zahid for closing remarks. He is a member of PEPFA Board of Governors and also a fellow member of PEPFA and ICAP. Sir Ahmed Suleiman. थैंक यू मिस सामिया हारून, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा हमारा, क्योंकि टाइम 2 घंटे का था इस वेबिनार का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पिफ्फा फैसलाबाद और लाहौर ब्रांच कमेटी का फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वंडरफुल सेशन ऑन फाइनेंस बिल। एज ऑलवेज पिफ्फा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी, लाहौर ब्रांच कमेटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं और बहुत अच्छे इवेंट्स और वेबिनार्स और सेमिनार्स अरेंज करते हैं। बाकी ब्रांच कमेटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद और कराची वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनके वेबिनार्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुज़म्मिल हिमानी साहब का, जो कि स्पीकर थे डायरेक्ट टैक्सेस में। ग़ालिबन वो अब इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैडम ताहा बकाई का, जिन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, उनकी अवेलेबिलिटी का। दोनों हमारे स्पीकर्स कराची से तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया उन दोनों स्पीकर्स का। उसके बाद हमारे वर्दी पैनलिस्ट जनाब नदीम भट्ट साहब, आई ऑलवेज लव टू लिसन हिम। बहुत माशाल्लाह इनकी ग्रिप है अपने सब्जेक्ट में, टीचर हैं, पढ़ाने के अंदाज से, स्टूडेंट्स को समझाने के अंदाज से समझाते हैं। इतना इमरान मुनीर साहब का माशाल्लाह इज़ अ वंडरफुल टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स बार में बड़े काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हमारे मॉडरेटर अब्दुल सलाम साहब, तशाम सुलेमान जाहिद साहब, जिन्होंने टाइम निकाला अपनी ऑफिस की रूटीन से, तमाम सब लोगों ने। और हमारी आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी सैयदा सामिया हारून, जिन्होंने अपनी ऑफिस के लिए टाइम निकाला। सब लोग डेफिनेटली सब लोग बिजी होते हैं, सबकी मसरूफियत है। और पिफा ब्रांच कमेटी लाहौर और फैसलाबाद को ये क्रेडिट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनेंस बिल का जो सेमिनार है और फाइनेंस एक्ट के ऊपर भी वेबिनार और सेमिनार रखे जाते हैं और तमाम लोग भरपूर शिरकत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 90 प्लस की स्ट्रेंथ थी आज की वेबिनार पे, 100 के करीब भी टच हुआ है लोगों की मसरूफियत की वजह से। बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग भी लोग देख सकते हैं और यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस वेबिनार का ये बेनिफिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है, प्रेजेंटेशन भी टाइमली कंप्लीट हुई, बहुत ही ज़बरदस्त पैनल डिस्कशन थी। और उम्मीद है, और मैं देख रहा हूँ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो फीडबैक है बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आप सब लोगों की का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir, for your generous remarks. On अल्लाह हाफिज़। concluding the session, I would like to inform that a recording of today's webinar will be available on our Facebook page. On behalf of our organizing team and PEPFA Faisalabad and the Lahore Branch Committee, thank you once again. Stay informed and we hope you see you again in next section. Goodbye and take care. Allah Hafiz.